All right, yeah. Hey man, how are you? So, hey Samar, कैसे हो यार? Hi, good to have good that you have me here. Uh, I mean, नहीं, it's an absolute I pleasure think to, we should begin with it. हाँ, like it's a pleasure to have you here. Now, for those of you who do not know who Samar Sheoran is, basically, guys, he is a carnivore influencer, and आज हम जो है ना बात करने वाले हैं what carnivore diet is and how it's going to actually change your life. So, we'll start with your story, Samar. Basically, यहाँ पे ना कि how did you discover carnivore diet and वट वर बिकॉज पता है क्या कार्निवोर डाइट को ना लोग ऐसे प्रोपिगेट नहीं कर रहे कि जो इट्स अ वेट लॉस डाइट इट्स बीइंग प्रोपिगेटेड एज इट्स लाइफ चेंजिंग डाइट जो है ना आपकी जो पास्ट की एलिमेंट्स आपको जो दिक्कत दे रही थी ना दीज आर रिड्यूस सिग्निफिकेंटली ऑन दिस डाइट सो वहां से हम शुरू करना चाहेंगे लाइक यू मेंशन कि कहाँ पे जो है ना यू वर हैविंग डिफिकल्टीज बेसिकली राइट वहां से As you said, like carnivore diet is बोला जा रहा है कि मतलब बहुत सारी ailments को control करने के लिए है और ऐसे है and it's being taken as a proper red pill कि it's the diet for everything. मैं देख रहा हूँ कि लोग कोल्ड कफ कुछ भी हो दे सजेस्ट दी carnivore diet खुल के सीधा like all of the people who are near and around me. राइट And I don't think there's a problem with that at all because ओके अगर जहाँ से मतलब मैं बहुत टाइम से जहाँ से रिसर्च कर रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ तो there used to be a forum which was called Meat Heals. ओके और मीट हील्स पे there were countless people who were giving their opinions about how they went on the carnivore diet. वो carnivore diet पे गए और हाँ वहाँ पे इनकी different sorts of diseases वो क्योर हो गई. Type 2 diabetes. Hi, am I audible? you Yeah. you went out for a moment for 1 second only, Yes, sorry. but it's Yeah. all okay. So लोगों की टाइप 2 डायबिटीज थी, किसी को हाइपरटेंशन था, किसी को बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं सोर्स मसल एक्स और ये सब जो हमें लगता है कि रेगुलर पार्ट ऑफ लिविंग है कि हम Yeah, सुबह उठ के प्ले करके हम अभी वेंट आउट फॉर अ गेम और हमने एक्टिविटी करी और एक्टिविटी करने के बाद हमें मसल सोरनेस होएगी ही होएगी. right. People stopped experiencing that soreness carnivore diet पे. And I was just reading that forum, and Hmm. that's where I tumbled काफी पहले about on the carnivore thing. But मुझे उस टाइम पे लगा कि बहुत extreme है ये. And सबसे ज्यादा इसके results थे for the people who were having autoimmune conditions. Right. तो autoimmune में eczema, psoriasis, IBS में कुछ relation है, but IBS is not autoimmune. Hmm. उसके अलावा they were like ulcerative colitis था, उनको काफी help थी इस पे, and atherosclerosis, and even there were people who had severe sorts of मतलब I've seen like some reports जिसमें heart condition was working almost like 30%, 39%. Hmm. And these guys went on the carnivore diet और वो carnivore diet के बाद it significantly grew up from 39 to 45, 46, 47 ऐसे, which was supposed to not happen क्योंकि red meat was supposed to be bad for your cardiovascular health और ये सब. Exactly. Like जो हमें अभी तक बताया गया था कि जो है ना रेड मीट इज बैड फॉर योर कोलेस्ट्रॉल, रेड मीट जो है ना आपके हार्ट फंक्शन को जो है ना आर्टरीज में ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा. सो वो सब कहाँ से प्रोपिगेट हुआ है बेसिकली? आई थिंक बहुत सारी ना स्टडीज हैं इसके पीछे और ये सारी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज हैं जिसमें दे हैव जस्ट पिक्ड अप पीपल एंड दे हैव उनने कोहॉर्ट उनपे प्रॉपर स्टडी में करके दे हैड आस्क्ड देम टू प्रॉपर ट्रायल्स करे हैं उनपे, बट लाइक मोस्ट ऑफ द ट्रायल्स वर एक्चुअली स्टडीज दैट वर नॉट रेड मीट प्रॉपर, दे वर प्रोसेस्ड रेड मीट. और उनमें प्रॉपर कंडीशंस भी नहीं लगाई हुई थी. जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल वर हैविंग स्टिल हैविंग आइसक्रीम, मोस्ट ऑफ द पीपल स्टिल स्मोकिंग सिगरेट्स, डूइंग अल्कोहल, एवरीथिंग. तो this was genuinely a flawed study. A lot of them are a flawed study, and we are seeing this now क्योंकि अभी recently carnivore diet की हार्वर्ड स्टडी हुई है. And it's हाँ, आई रेड दैट. yeah, I mean, it's not the gold standard of studies. इतना हम्म. कोई वो नहीं है. But again, मतलब they were like 5,000 with some people who were rounded up.
और उनको उनके खुद के एक्सपीरियंस बेस्ड है ये कि व्हाट सिम्टम्स उनको रिलीव हुए, जैसे ऑलमोस्ट 86% सेड देयर सॉरी 92% सेड देयर टाइप 2 डायबिटीज वेंट टाइप अवे, 2 डायबिटीज वेंट अवे, या हाँ बेसिकली। 86% वर लाइक हाँ हाइपरटेंशन। और बट लेकिन अगेन मतलब वी नीड मोर स्टडीज हेयर आल्सो, लेकिन ऑल ओवर यू जस्ट कांट इग्नोर कि इतने सारे लोग बाहर आके तुमसे कह रहे हैं कि हमारा ये हील हो गया, हमारा ये हील हो गया, या हमारी गट प्रॉब्लम्स थी वो दे वेंट अवे, एंड यू जस्ट कांट इग्नोर देम। एट सम पॉइंट दीज पीपल विल बिकम अ स्टडी। एग्जैक्टली exactly. ये बात तो आई एग्री विद टोटली। बट पता है इसमें ना मुझे ऐसा फील होता है कि जो है थोड़ा बहुत देयर इज आल्सो लाइक कंट्रीब्यूशन ऑफ मीडिया इन हियर एज वेल, एब्सोल्युटली, है ना? एब्सोल्युटली। अभी भी मैं आर्टिकल्स देखता हूँ अभी भी आर्टिकल्स है जो प्रमोशन में कभी हेल्थ सेगमेंट पे आते हैं, तो देर देर आर्टिकल्स जो कॉन्स्टेंटली बोल रहे होंगे आपको कि सर्टेन अमाउंट ऑफ रेड मीट खाना चाहिए एक वीक में और ऐसे ही करना चाहिए। एंड आई जस्ट विश कि मैं उन सारे आर्टिकल्स पे अपनी प्रमोशन लगा दूं, काश कि आई ईट लाइक दिस लाइक 1.5 years that I've been eating only red meat, राइट। and they should just see my scores, they should see my lab assessments. कोई आई मीन मुझे नहीं लगता था कि आई वाज अ फिट पर्सन बिफोर, मुझे नहीं लगता था कि आई कुड लाइक इम्प्रूव ऑन दैट। ओके। और कार्निवोर में लाइक मैम डेफिनेटली मतलब उस पे भी इम्प्रूव कर गया मैं वाज शॉक्ड। एंड ये सारा मीडिया का प्रोपेगेंडा, मतलब आई डोंट थिंक इट्स प्रोपेगेंडा, बट वो साइंस ने कहीं ना कहीं शुरू किया है, हमारी स्टडीज ने कहा जबकि प्रोसेस मीट इज बैड, विच इज एक्चुअली ट्रू। हम्म। प्रोसेस मीट इज एक्चुअली वर्स देन सम फॉर्म ऑफ कार्सिनोजेनिक, इवन इवन न्यूक्लियर सबस्ट्रेट्स भी उससे भी हार्मफुल है कई बार हाँ आई प्रोसेस एग्री रेड मीट। टोटली। इट हैज harmful compounds like proper chemical pesticides होते हैं, they are being used in processed meat। तो मतलब आई एग्री ऑन दैट पॉइंट कि अगर रोज कोई प्रोसेस मीट खा रहा है रेड मीट, वो डूम्ड है, वो सही में डूम्ड है। और मीडिया का भी इन्फ्लुएंस वहीं से आ रहा है, और हम उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अभी आप देखोगे बीच में एक टर्न आया था 90s और 2000s में, कहीं ना कहीं हमारे लोग भी, हमारे डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करने लग गए थे कि हमें सबको सीड ऑयल्स या फिर कनोला ऑयल और ये सब खाना चाहिए था। हाँ और फिर मतलब लोगों ने उसके इफेक्ट्स देखे एकदम से, लोगों की हार्ट हार्ट हेल्थ और ये सब खराब होने लगी, और वहां से वो एकदम से स्विच आता है वापस से कि घी इज एक्चुअली गुड अगेन। तो वी एग्जैक्टली। स्विच बैक टू एनिमल बेस्ड फूड्स अगेन। तो मेरे ख्याल से एक पॉइंट पे मीडिया के साथ भी यही आएगा कि वी विल जस्ट रियलाइज कि रेड मीट इज एक्चुअली गुड फॉर यू। एंड दैट्स वेयर दी छोटी छोटी आर्टिकल्स जो होते हैं ना टीओआई में, जो कोई रैंडम बंदा लिख रहा होता है जिसको कोई ना तो एक्सपीरियंस है ना स्किन इन द गेम है ना कुछ भी है, मतलब प्रॉब्ली वुड बी अ फैट गाय सिटिंग ऑन अ चेयर, जो लिख रहा होता है कि यो ऐसे ऐसे यू शुड ईट रेड मीट वंस इन अ डे। सो प्रॉब्ली वहां तक वो तब पहुंच जाएगा, बट अभी आई डोंट सी दैट, मतलब आई डोंट सी दैट एटलीस्ट फॉर 1 year एटलीस्ट। आई थिंक इवन लॉन्गर मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मतलब मैं जो 5 है ईयर ना का टाइम पीरियड ले सकता था, बट 1 year इज समथिंग मैं ऑप्टिमिस्टिकली कह रहा था। हाँ क्योंकि अभी तक तो जितना समझ में आता है यूजुअली अभी तक जो है सारी की सारी वर्चुअल सिग्नलिंग चल रही है कि जो है ना हम हम्म। वीगन हो जाते हैं एंड वी आर काइंडर देन अदर पीपल, लाइक देयर इज प्योर वर्चुअल सिग्नलिंग जो है ना दैट इज गोइंग ऑन। या डेफिनेटली भाई, आई डेफिनेटली अग्री विद द पॉइंट कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो वीगन्स हैं मोस्ट वर्चुअल सिग्नलिंग ही कर रहे हैं। एंड सम सम ऑफ देम आर एक्चुअली ब्लाइंडेड बाय इट, उनको नहीं दिख रहा सही में कि असली में क्या हो रहा है जब तुम वीगन फार्मिंग कर रहे हो और ये सब कर रहे हो। एनिमल फार्मिंग जो इंडस्ट्रियल वे में हो रही है, दैट इज नॉट द वे टू गो फॉरवर्ड हम्म। कार्निवोर डाइट पे। मतलब आई अग्री टू दैट, दैट्स व्हाई मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि जितना भी हो सके, मतलब माय एनिमल इज लोकली सोर्स्ड, आसपास कहीं से आए, घास खा रहा हो यहीं पे, रीजनरेटिव फार्मिंग में फार्मिंग हो रही है उसके साथ। मतलब जैसे एटलीस्ट गोट्स के साथ बहुत इजी है, यहाँ पे आप गोट्स रख रहे हो और वो गोट इज लिविंग ऑफ द लैंड, तो हम्म। वहीं से धरती से पानी पी रही है और वहीं पे ही वो रह रही है, खा रही है, शिटिंग देयर सब कुछ। तो इट्स एक्चुअली द न्यूट्रिएंट्स आर बीइंग रिसाइकल्ड। राइट। और लेकिन एग्रीकल्चर इज अगेन अ डिफरेंट थिंग, मोनोक्रॉप एग्रीकल्चर जिसमें एक क्रॉप ही लगा के उसी को तुम हार्वेस्ट कर रहे हो, उसी पे तुम पेस्टिसाइड्स डाल रहे हो, उसी पे तुम इंसेक्टिसाइड्स छिड़क रहे हो, उस पे अगेन तुम इतने बेसिकली तुम फर्टिलाइजर्स भी यूज कर रहे हो। वो इट्स राइट।
किलिंग दी टॉप सॉइल। आप देखोगे पंजाब में ऑलमोस्ट 86% डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी मेटल्स की प्रेजेंस है वाटर में, और वो स्ट्रेट अप रीजन है उसका एग्रीकल्चर। उसका रीजन एनिमल बेस्ड फार्मिंग और या फिर कुछ भी नहीं है। जो यहाँ पे लोग वीगनिज्म को यूज करके राइस और ये सब यूज कर रहे हैं, राइट। वो स्ट्रेट अप वही है। और अगर आप कहोगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं हम, ऑर्गेनिक फार्मिंग से बेटर रेज कर लेंगे हम इसको, तो आप देखोगे कि हिस्टोरिकली सिंस द एज ऑफ एग्रीकल्चर, राइट। 10,000 BC के बाद से, जब एज ऑफ एग्रीकल्चर हमने एग्रीकल्चर करना शुरू किया एज अ ह्यूमन स्पीसीज, हम्म। उसके बाद से हमारी जो एमिशंस है वो बढ़ती चली गई, और वो एग्रीकल्चरल एमिशंस है उससे ज्यादा। हाँ, आई एग्री दैट, क्योंकि ऑन दैट, क्योंकि उससे पहले जो है हम लोग बेसिकली फॉरेज एंड स्कैवेंज कर रहे थे। हाँ, तो वो वहाँ पे हम हमारा जो इकोसिस्टम था वो वेल मैनेज था, कि हम हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, बहुत सारे ट्रीज हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कार्बन एक्चुअली आपकी रूट्स में जाके और वहाँ पे सेटल हो रहा है बहुत टाइम से, और कार्बन स्टोर हो रहा है। अब क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर फार्मिंग और ये सब कर रहे हैं हम, इतना राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें से मीथेन निकल रही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल रही है, जो सारी ग्रीन हाउस गैसेज है, विच इज प्रिसाइजली। लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज, विच इज लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज। श्योर शॉर्ट थिंग है वहाँ पे। हाँ। और ये सारे एमिशंस हैं, प्लस फिर वो जो सिग्नलिंग जो ये थी कि हम डायरेक्टली एनिमल्स को नहीं मारते, एग्जैक्टली। बट इनडायरेक्टली इतना बड़ा सोर्स है एनिमल किलिंग का, जो वीगन एग्रीकल्चर है। अगर इफ यू आई सॉ दिस, एक एक बस मैंने वो देखा था, एक 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 जस्ट डेटा पॉइंट था वो। द डेटा पॉइंट वाज दैट इन 2017-18 अलोन, हम्म। 2017-18 अलोन, कैलिफोर्निया में सिर्फ आलमंड फार्मिंग के लिए ऑलमोस्ट 50 बिलियन बीज डाइड, वाओ। which is, I mean, it's just a huge number। किसी को रियलाइज नहीं हो रहा है ये कि जब आलमंड मिल्क पी रहे हो उसके लिए कितनी बीज मरी है, एंड दैट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। उसके बाद उस प्रोसेस में और जो मरी होंगी वो उसके ऊपर है। एंड प्रिसाइजली। अगर तुम नॉर्मल कार्निवोर बेस्ड खा रहे हो, तो एट मैक्स यू गोना किल वन गोट वन गोट अ हम्म। मंथ, and that ओके। translates to 12 goats a year ये। for one person। और हम्म। अगर तो हम इसको 7 बिलियन पीपल पे लेके जाएंगे, तो दैट्स 84 बिलियन बिलियन। गोट्स। हाँ, इट्स स्टिल वे 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 लेसर देन जो आलमंड्स में वो हो रहा है और ये सब, मतलब अगर डेटा पॉइंट में देखें तो हम। लेकिन थोड़ा ना, एक मिनट में वापस जाना चाहूंगा ऑन दिस थिंग कि ना, इंडिया में कितने सारे लोग राइट नाउ लोकली सोर्स मीट ले पाते हैं। हम्म। क्योंकि जितना, मतलब मेरे पास इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट क्योंकि मेरे अराउंड जो है जहां मैं रहता हूँ वहां पे लोकल बुचर्स थोड़े कम है। हम्म। तो इफ यू आर गोइंग टू गेट समथिंग फ्रॉम योर स्लॉटर हाउस वाला जो मीट आता है, वो प्रोसेस नहीं होगा, बट वो आया डायरेक्ट स्लॉटर हाउस से है। सप्लाई चेन को फॉलो करना चाहिए हमें वैसे। मैंने सप्लाई चेन को फॉलो किया है। मैंने देखा है कि जो मेरे यहाँ पे जो थोड़े से बड़े बुचर हैं, वो जो जैसे दिल्ली से आता है उनका मेन सा हम्म। रॉ मटेरियल, तो दिल्ली के पीछे कहाँ से आ रहा है, दिल्ली के पीछे भी काफ़ी लोकल है काफ़ी हद तक। मतलब इट्स नॉट दैट कि कैलिफोर्निया से उड़ के आ रही है बकरी हमारी। इट्स स्टिल वेरी मच नियर, कि हम राजस्थान से सोर्स कर रहे हैं थोड़ा बहुत, जहाँ पे मतलब प्रॉपर जहाँ पे ग्रेजिंग हो पा रही है, क्योंकि दिल्ली में इतनी ग्रेजिंग पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमने इतना हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है। हाँ। तो इट्स अगेन बीइंग सोर्स फ्रॉम समथिंग दैट इज वेरी नियर। जो हम्म। जैसे राजस्थान में मैंने था, भरतपुर के पास से आ रही थी। भरतपुर के पास काफी गांव है, तो वहां से जो पशु आहार है सारे, वो वहां से इसको दिल्ली भेजते थे, और विच इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ डिस्टेंस ऑफ 100 150 200 किलोमीटर्स। हम्म। अगेन बहुत कम है, क्योंकि और दैट इज द बेयर मिनिमम यहाँ पे। अगर मैं लोकल बच्चर से लूँ तो वो तो हाँ अपनी अपनी 2-3 बकरियां यहीं पे पाल रहा है, बट हाँ। अगर थोड़ा सा इंडस्ट्रियल स्केल पे करना है तो वो बाहर से ही आ रही है जो, लेकिन डिस्टेंस अगेन बहुत कम है। इंटरेस्टिंग। और जो है, अगर कार्निवोर डाइट की बात की जाए तो इसमें जो है, इज दैट ओनली रेडी मीट अलाउड, या उसमें आप एग्स ऐड कर सकते हो, या लाइक सी फूड अलाउड है, और वाइट मीट जो चिकन होता है उसमें हम्म। क्या क्या अलाउड होता है बेसिकली इन अ प्रॉपर कार्निवोर डाइट? इन अ प्रॉपर कार्निवोर डाइट यू अलाउड टू हैव ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स, मतलब डेयरी भी अलाउड है, यू कैन हैव फिश फिश सी फूड एक्सेट्रा, वो भी ले सकते हो तुम। यू कैन ऑल्सो हैव रेड मीट। आई थिंक रेड मीट इज प्रिस्टीन, रेड मीट से ऊपर कुछ नहीं है।
मेरे को लगता है, आई सिंसियरली बिलीव दैट। In terms of taste or nutritional value? न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छा। प्लस लाइक अडेप्टेबिलिटी टू योर सिस्टम। आई थिंक हमने फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमने द फैटीएस्ट एनिमल्स जो बड़े थे वो ही खाए हमने, एंड दोज वर रेड मीट एनिमल्स। तो आई आई डोंट थिंक हमारे पास क्लियर एविडेंस है कि हम जब फॉरेज कर रहे हैं तो हम चिकन्स के पीछे जा रहे थे। वी आर एक्चुअली गोइंग आफ्टर मच मोर आफ्टर गोट्स, गोट्स, बुल्स Boar? और बोर। बोर मतलब आई थिंक वुड बी डिफिकल्ट टू हंट अगेन, क्योंकि इट्स अ पावरफुल एनिमल। बट बोर के भी क्लियर एविडेंस हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। उसके अलावा बट लाइक वी वर हम देख रहे थे जो भी एनिमल है जो बड़ा है और जो फैटी है, दिखने में पता चल रहा है कि मोटा है, इसमें से फैट होगा ज़्यादा। वी आर गोइंग फॉर हाई फैट थिंग्स। तो चिकन वाज अगेन अ वेरी स्मॉल एनिमल, वेरी मीक एंड वीक बर्ड, पतला सा, फैट तो अगेन, वो फैट कंटेंट भी सर्वाइवल के कम लिए है। हो गया कि अगर तुम्हारे को आसपास कुछ नहीं मिला, हाँ इन मतलब दैट रैबिट्स और केस। ये क्लियर एविडेंस भी है इसका कि जो एस्कीमोस थे, हम्म। उनको कई टाइम पे बीच में रैबिट्स रैबिट्स खाने पड़ते थे जब उनको प्रॉपर कुछ मिलता नहीं था। पेंगुइन्स, राइट। इसे पेंगुइन्स मारते थे बट उनको रैबिट्स खाने पड़ते थे, और वो एग्जैस्पिरेशन होती थी क्लियर उनकी, क्योंकि फैट बहुत कम होता था एंड दे कुडंट लिव ऑफ हाँ, इट इट्स अ प्रॉपर्ली। वेरी लीन मीट, बहुत ज्यादा लीन होता है हाँ काफी रैबिट लीन मीट। है। तो इसलिए मतलब दोज दोज एस्कीमोज दे वर फ्रस्ट्रेटेड कि उनको रैबिट खाना पड़ रहा है बहुत टाइम से, एंड दे उनके मेंटल हेल्थ ऐसे इरिटेशन होती थी उनको। इट हैज बीन रिकॉर्डेड क्लियरली। तो अगेन इंटरेस्टिंग। तो दैट्स व्हाई आई प्रेफर कि चिकन और ये सब, मतलब इफ यू हैव टू तो उसके लेग्स वुड बी समथिंग जिसमें थोड़ा सा हाई फैट है। हाँ। बट केमिकली द वे दीज चिकन्स आर रेज्ड, उसमें हमेशा एक प्रॉब्लम है उसमें। दे हैव समथिंग व्हिच इज कॉल्ड सम नॉन दिस एन एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड, इट्स कॉल्ड लिनोलोइक एसिड। राइट। तो अच्छा। लिनोलोइक एसिड इज समथिंग दैट इज कनेक्टेड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स अभी। तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ है उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है काफी हद तक लिनोलोइक एसिड की। वो इट एक्टिवेट्स समथिंग कॉल्ड एज कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स ओके। व्हिच डिसरप्ट्स योर माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ। तो वो लिनोलेनिक एसिड की परसेंटेज कितनी हाई है डिफरेंट फूड्स में, डिफरेंट फैट्स में, वो डिटरमाइन करता है कि ऑल ओवर आपकी माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ कैसी रहेगी। तो अगर चिकन जो सोर्स होता है जो प्रॉपरली अपने जो जो खाना चाहिए उस पर रेज नहीं है, जैसे चिकन्स वर रेज्ड कि हम उन्हें दे वर सपोज टू लिव ऑफ द लैंड, वहाँ ओके। पे उनको छोटे कीड़े मकोड़े वर्म्स और ये सब खाते थे वो। राइट। तो वो सब जो वो खाते हैं तो उनके अंदर प्रॉपर रेशियो रहता है, लिनोलेनिक एसिड बढ़ता नहीं है। लेकिन जब वो हम उनको ग्रेन्स खिलाने शुरू करते हैं, लिनोलेनिक एसिड बढ़ जाता है, उनकी ऑल ओवर हेल्थ भी डिक्लाइन करने लग जाती है। तो तभी हम देखते हैं उनको एंटीबायोटिक्स यूज़ और ये सब इतना ज़्यादा हो गया है कि उसको बस चिकन को इम्यूनिटी उसकी बूस्ट रखने के लिए, या फिर उसको बीमारी ना हो, वो मर ना जाए जल्दी। हाँ, तो वो बहुत ज्यादा एंटीबैक्टीरियल्स उन्हें वो फीड करते हैं, वो तो आई हाँ, एग्री। और दैट इज द व्हिच इज द रीजन लीडिंग कॉज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एएमआर हम्म। करके अगर तुमने सुना होगा। तो एएमआर में होता ये है कि एंटीबायोटिक्स हमने इतने खिला दिए हैं कि अब जो बैक्टीरिया आ रहा है वो इन सारे एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट है। एग्जैक्टली, तो हाँ। तो इट्स अ कंसर्न अभी। अब यूएन डब्ल्यूएचओ ये सारे इस पे बैठ के डिसाइड कर रहे हैं। इंडिया ने अपना पूरा प्रोग्राम निकाला है वन हेल्थ करके, जो सिर्फ एएमआर को चेक करता है। और व्हाट इज द लीडिंग कॉज ऑफ एएमआर? लीडिंग कॉज है एंटीबैक्टीरियल जो में हम अपने पोल्ट्री को लगाते हैं। वाओ। और some to some extent it's also indiscriminate, जो लोग दवाइयाँ खाने लग गए हैं, छोटी हम्म। सी बात पे दवाइयाँ खा लेते हैं, तो वो भी है। एग्जैक्टली। बट अगेन मतलब हम पोल्ट्री से बहुत एंटीबायोटिक्स और वो सब इंजेस्ट कर रहे हैं। तो दैट्स वाई इनडायरेक्टली। मतलब, हाँ दैट्स वाई मतलब chicken again you can eat it because any animal source of nutrition is actually way better than any plant source, क्योंकि उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर हम हाँ। बायो अवेलेबिलिटी के स्टैंड पॉइंट से देखें, स्पिनच में देखते हैं हम कि आयरन है एक्चुअली, अगर उसकी क्वांटिटी देखें तो क्वांटिटी में चिकन से ज़्यादा है, राइट। बट उसमें से बायो अवेलेबल कितना है, ऐसी फॉर्म्स में कितना है कि जो हमारी बॉडी एक्चुअली अब्जॉर्ब अब्जॉर्ब कर करे। पाए, वो 7% है सिर्फ उसका। तो दैट वाओ। रिड्यूसेस इट टू सम एक्सटेंट कि हम विल बी गेटिंग मच मोर, excuse me, we'll be getting much more harm out of it rather than benefits.
और इवन स्पिनच में मतलब अगर हम फाइटोटॉक्सिन्स की बात करें तो वो तो वुड बी लाइक अ ह्यूज डिबेट अगेन। नहीं, एक्चुअली समथिंग दैट करते शुड, हैं इस चीज में, क्योंकि ना पता है हाँ। बहुत सारे लोग इस चीज को ना, इसका बायोलॉजिकल फैक्टर समझते नहीं है कि इफ यू आर ईटिंग अ प्लांट, उसके अंदर भी तो एक डिफेंस मैकेनिज्म होगा कि उसे सरवाइव करना है। और फाइटोटॉक्सिन्स आर एसेंशियली समथिंग लाइक दैट, कि जो है ना, जो तुम्हारे को दिक्कत देता है इंटरनली। हम्म। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा था कि मतलब मैं बिफोर दिस हैपेंड, कार्निवोर हैपेंड एंड कीटो हैपेंड, उससे पहले मैं ऑलमोस्ट सेमी प्लांट बेस्ड था। ओके। मेरी डाइट ऐसी होती थी कुछ कि मैं सुबह उठता था, एक स्मूदी पीता था, वही जो ग्रीन स्मूदी सब कहते हैं, जिसमें मैं डिफरेंट टाइप के ग्रीन्स ऐड करने की कोशिश करता था कि व्हीट मतलब ग्रास मुझे एंड ऑल। वैरायटी मिले। हाँ, वीट ग्रास, स्पिनच, और स्पिनच भी घर पे पालक बनाया हुआ है, वही था। राइट। और आई डिड दैट फॉर लाइक वन एंड हाफ ईयर सॉलिड। और उसमें मतलब उसके बाद ओट्स खा रहा हूँ मैं, उसके बाद एक और स्मूदी पी रहा हूँ, खेल के आ रहा हूँ, तो आई वाज हैविंग लाइक सेवन सेवन ऑलमोस्ट 7 मील्स, स्मूदीज वूदीज ओट्स, राइस और ये सब मिला मिलू के। एंड आई वाज द इट फेल्ट लाइक सो, आई मीन, थोड़ा सा बेनिफिट इस वजह से था उसका कि मैंने डेयरी छोड़ दिया था, तो इरिटेशन नहीं थी इतनी। बट मुझे लगता है क्लियरली वो एक हनीमून पीरियड था मेरा, जिसमें मेरे ऑलरेडी, जैसे हम सेमी प्लांट बेस्ड या उस पे जाते हैं, हम्म। तो शुरू में वी फील जनरल अपटिक इन आवर हेल्थ। शुरू में हमारी हेल्थ अच्छी लगती है हमें कि क्योंकि हम इतने सारे प्रोसेस फूड छोड़ देते हैं। तो ओके। मैं सिर्फ प्रोटीन पाउडर्स यूज़ कर रहा था, मैं सिर्फ स्पिनच और ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहा था। तो इतने प्रोसेस फूड छोड़ते ही एकदम से देयर इज अ जनरल अपटिक इन योर हेल्थ। तुम्हें ठीक लगता है है। कि यू फील नाइस और ऐसे ऐसे। बट ऑल ओवर आई मैं माय बॉडी वेट वाज डिक्लाइनिंग, मसल मास कम रिटेन कर पा रहा था, मैं 7 मील खा रहा हूँ फिर भी। वाओ। एंड आई वाज यूजिंग एग्स बस अपने रात वाले मील में। अपने रात वाली मील में भी एग्स थे, लेकिन उसके साथ बहुत बड़ी एक सैलेड की बोल होती थी हमेशा, जिसमें डिफरेंट सैलेड, ब्रोकली वोकली ये सब मैं यूज कर रहा था। राइट। नो डाउट मतलब आई फेल्ट कि थोड़ा सा बेटर हुई है हेल्थ, ऐसा लग रहा था वहां पे उस पॉइंट पे। बट इंटरनली मेरे रिजल्ट्स भी, लैब रिपोर्ट्स भी सब नॉर्मल थी। बट हमेशा मतलब व्हेन आई वाज प्लेइंग आई डिडंट फील कि मैं अपने फुल पोटेंशियल पे था। मतलब आई आई लैक द वायरलिटी, अगर अगर उससे मतलब दैट्स द जनरल फीलिंग दैट आई फेल्ट आउट ऑफ इट। सो एसेंशियली लाइक एक बॉडी वेट ड्रॉप हो रहा था, यू वर लूजिंग मसल, सो एक तरह से एनर्जी पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट आ ही रहा होगा ना। हाँ, मतलब क्लियर इफेक्ट होगा कि मसल कोरिलेशन भी होगा कि मेरी मसल मास ड्रॉप हो गया है। दैट वुड हाँ। सिग्निफाई कि आई वुड बी लेस एनर्जेटिक इन माय एंडेवर्स, मुझे और हाँ, क्योंकि मेहनत करनी लिथार्जी पड़ेगी। ऑलरेडी सेट इन कर जाएगी, और कहीं ना कहीं बॉडी वेट अगर ड्रॉप होता है तो जो है ना, यू एक एसेंशियली वीकनेस फील होने लग जाती है बॉडी में, राइट, राइट। है ना। वो प्लस चीज और भी मैं। चीजें थी। प्लस मतलब जैसे आई आई वाज स्टिल प्लेइंग, हम्म। मतलब आई हैव ऑलवेज बीन एक्टिव, तो मैं कोई ना कोई राइट। स्पोर्ट खेलता रहता हूँ। तो वंस देयर वाज दिस इंसिडेंट जो मैंने काफी बार बताया हुआ है लोगों को, कि आई वाज प्लेइंग बास्केटबॉल एंड आई वाज या। जंपिंग और ये सब कर रहा था, और एकदम से शिन पेन शुरू होने लग जाता है, एंड आई थॉट कि राइट। फ्रैक्चर हो गया है। और आउट ऑफ नोवेयर था वो, मुझे लगा कि मैंने बस ज्यादा ऊंचा जंप कर लिया, नीचे आया हूँ, वो लैंडिंग में प्रॉपर लैंडिंग में कहीं मैंने गलती कर दी, तो इस वजह से हुआ है वो, जबकि एक्चुअली में कुछ नहीं हुआ था वो। तो ओके। दोज वर साइंस अगेन दैट माय बॉडी वाज गिविंग अप, बोन्स ब्रिटल वीक हो रही हैं, और बिना बात के शिन पेन्स, बिना बात के एंकल पेन्स और ये सब शुरू हो गए। तो आई मतलब आई somehow ignored them कि ऐसे ऐसे मोस्ट ऑफ द गुड पीपल एथलीट्स, उनको देख के मैंने किया था, तो मुझे लगा कि आई मीन दे कांट बी रॉन्ग, अच्छा। दे कांट बी ठीक है। रॉन्ग, वो वाली चीज आ गई थी मेरे पीछे। ओके। तो मोमेंट ऑफ अवेकनिंग ये थी कि कोविड हैपेंड, हम्म। सेकेंड वेव में कोविड हुआ, और मेरे को हुआ, मेरी पूरी फैमिली को हुआ। और मुझे लग रहा था कि मैं वेजिटेबल्स खा रहा हूँ और ये सब खा रहा हूँ, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। बट द थिंग दैट हैपेंड वाज कि मेरे पापा नॉर्मल दूध दूध पीते हैं, एनुअल बेस, थोड़ा सा जो दूध दही है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, कोई सैलड्स नहीं खाते, कुछ नहीं करते। हम्म। कभी कभार कुछ खा लिया तो खा लिया। वो मेरे से पहले रिकवर कर गए। वो ही रिकवर्ड इन 3 डेज, और मेरे को 5 से 6 दिन लगे, उसमें भी मुझे आई हैड डिफिकल्टीज मतलब ब्रीदिंग में। तो वाओ। somehow I felt कि यार आई डोंट थिंक कि दिस इतना डाइट, इफेक्ट आ रहा है। हाँ, इफेक्ट है इतना। तो वहां से आई बिगेन क्वेश्चनिंग इट प्रॉपरली। और फिर मतलब धीरे धीरे चलते चलते ये कीटो वाला फेज और वो सारा आ गया था उसके बाद।
सो एसेंशियली, और ये फैक्टर ना बहुत सारे, मतलब जितने भी लोग प्लांट बेस्ड डाइट्स पे गए हैं, ये देखा गया है, लाइक दे आर नॉट गेटिंग देयर डीएचएस, दे आर नॉट एक्चुअली गेटिंग देयर मैग्नीशियम इनटेक, उनका स्लीप पैटर्न भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा था, एंड दे हैव टू टेक सो मेनी सप्लीमेंट्स टू फॉर दैट डाइट ऑन वीगनिज्म। येट पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि जो है ना, जो चीज तुम्हारे को पूरा ऑप्टिमाइज कर रही है, एंड इट्स इजी, क्योंकि वीगन खाना एटलीस्ट इंडिया में तो यार मिलना अभी मुश्किल है। एंड इफ यू आर एक्चुअली ट्राइंग ऑन ए गोइंग ऑन ए कार्निवोर डाइट, वहां पे थोड़ा सा तुम्हें स्टार्टिंग में मे बी, मेरे को ऐसा लगता है, डिफिकल्टी होगी, बट यू कैन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दैट। व्हाट डू यू थिंक? दोनों साइड्स पे डिफिकल्टीज हैं डेफिनेटली। मतलब वीगनिज्म में अगर मैं कहूँ तो वीगनिज्म में देयर इज ऑलवेज दैट थिंग कि तुम्हें इतने सारे चीज़ें अपनी मॉनिटर करनी पड़ेगी हमेशा। हम्म। जैसे कार्निवोर की सबसे अच्छी बात ये है कि कार्निवोर पे यू जस्ट ईट 2 मील्स अ डे या 1 मील अ डे, और इंटरनली एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, दैट्स फॉर श्योर। क्योंकि तुम्हें कुछ मेजर करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मैग्नीशियम मेजर करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें विटामिन B12 मेजर करने की जरूरत नहीं है। अपने आप चेक करो, अपने आप एक टाइम के बाद तो सही ही निकलेगा, क्योंकि इतनी चीजें तुम्हें अपने आप से देखने की जरूरत नहीं पड़ रही उसमें, क्योंकि इट्स लाइक द बायोलॉजिकली प्रॉपर डाइट फॉर यू, दैट्स मेड फॉर यू। बट हम्म। अगर अगर तुम वीगनिज्म की तरफ जाओगे ना, तो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर एबल टू डू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, उन्होंने उसके हैक्स निकाले हैं कि आफ्टर अ वाइल कि मुझे कॉलेजन कम होएगा, कॉलेजन नहीं मिल रहा मुझे, तो हमें कॉलेजन अगर मैं बाहर का ले लूँ तो वो बेटर रहेगा। और विटामिन B12 की सप्लीमेंटेशन तो बहुत कॉमन ही है। एग्जैक्टली। मैग्नीशियम यूज कर रहे हैं, दे आर यूजिंग अ बंच ऑफ थिंग्स, और दैट्स वाई वो कर पा रहे हैं उसको प्रॉपरली। तो मैं मना नहीं करता लोग नहीं कर सकते वीगनिज्म प्रॉपरली, सम इफेक्ट्स के बाद कर सकते हैं, वो मिटिगेट भी कर सकते हैं, उसके कुछ इल इफेक्ट्स हैं। राइट। बट अगेन मतलब इफ यू आर अ नॉर्मल पर्सन जो घर पे बैठा हुआ है, जिसको कुछ नहीं पता, तेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है न्यूट्रिशन के बारे में, and you still want to gain on your health, I think that's where carnivore helps. कि तुम्हें बस, you don't need to worry about anything, just need to eat certain amount of meat, eat animal foods, eat animal fats, and you'll be all right अपने आप से ही। छोटी बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो अभी हमने रिसेंटली देखी हैं, जैसे अगेन दी लिनोलेइक एसिड परसेंटेज, रॉ मिल्क का यूज़ है, रॉ बटर का यूज़ है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसी सारी चीज़ें वो अब रिसेंटली मतलब और पढ़ना शुरू किया है मैंने, खुद उस पर रिसर्च करना शुरू किया है मैंने, खुद एक्सपीरियंस करना शुरू किया है खुद से। मैं फॉर द पास्ट 3 मंथ्स में 3 मंथ से मैं ऑन एंड ऑफ था, पिछले मतलब शुरू के 1 महीने, तो उसके बाद के जो 1.5 मंथ है मैंने रेगुलरली मैं रॉ मिल्क यूज़ करके देख रहा हूँ कि उसका इफेक्ट क्या है मेरे ऑटोम्यून्स पे और ये सब। हम्म। तो सो रॉ इम्यून, हाँ कंटिन्यू प्लीज, कंटिन्यू। हाँ, तो मतलब आइदर आइदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम मुझे लगता है, लेकिन कार्निवोर फिर भी सिग्निफिकेंटली ब्लेस्ड है, क्योंकि उसको ज़्यादा अपनी न्यूट्रिशन और इसकी वरी नहीं करनी पड़ेगी। ऑल्दो एक पॉइंट के बाद वील सी अ प्लेस वेयर तुम्हारे HDL कोलेस्ट्रॉल और LDL कोलेस्ट्रॉल विल गेट एलिवेटेड, विच अगेन इज नॉट अ बैड थिंग अब, क्योंकि जो रिसेंट स्टडीज हैं दे आर पॉइंटिंग इट आउट कि उसमें एलडीएल हाई हो जाता है एंड एचडीएल रिमेन सिग्निफिकेंटली लोअर। और मतलब दोनों ही जो नॉर्मल लिमिट्स ऑप्टिमम रेंजेस से ज़्यादा ही रहता है, HDL और LDL। हम्म। बट टाइम एंड टाइम अगेन वी हैव सीन कि अब जो रिसेंट स्टडीज भी यही कह रही हैं कि जो CVD और कार्डियोवास्कुलर डिजीज और इनके जो कॉजेज हैं, हम्म। दे मोस्टली शुगर, और से जो इन्फ्लेमेशन होती है या फिर इंसुलिन सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, राइट। उससे जो फर्दर कॉजिंग होती है वो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस करती है, जो आपके प्लाक डिपॉजिट हो जाता है ना, ओके। तो वो ज़्यादा लीडिंग रीजन है उसका। और LDL कोलेस्ट्रॉल और जो HDL कोलेस्ट्रॉल है, वो एक्चुअली आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर कर रहा है। इट्स लाइक अ राइट। बस इट्स लाइक अ हाँ। बस जो बस में आपके न्यूट्रिएंट्स बैठ रहे हैं और वो जा रहे हैं। एंड कोलेस्ट्रॉल इज एक्चुअली हेल्पफुल, आपके टेस्टोस्टेरोन और डिफरेंट आपके हार्मोन्स हैं उनको रेगुलेट कर रहा है वो। तो माइस में एक स्टडी है 40 इट्स आई थिंक इट्स अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जो 40 इट्स ऑलमोस्ट लाइक 40 years, स्ट्रेचिंग 40 years, ओके। या आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट माइस में स्टडी है। उस स्टडी में ये है कि जिनका माइस का LDL कोलेस्ट्रॉल लो हो गया है, उनको सिग्निफिकेंटली डाइट्स ऐसी दी गई जिसमें LDL कोलेस्ट्रॉल कम है, ओके। उनने उसमें देखा है कि उनकी इम्यूनिटी आफ्टर अ वाइल, उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल हर्ट कर जाती है, बिल्कुल डाउन चली जाती है एकदम से, एंड दे आर डाइंग ऑफ डिजीजेस व्हिच दे वरंट सपोज टू। तो आपकी LDL कोलेस्ट्रॉल आपकी इम्यूनिटी को भी हेल्प करता है, दैट इज अगेन सीन इन ह्यूमंस एज वेल, स्टडीज में बाद में। तो आपके LDL बहुत चीज़ें रेगुलेट कर रहा है, और वो हाई रहना इज नॉट अ बैड थिंग, अगर उसके साथ आपका HDL भी हाई है और आपके ट्राइग्लिसराइड्स लो है। ओके।
which happens इंटरेस्टिंग। in an animal based diet अपने आप से ही। लेकिन पता है, जो एक चीज मेरे को जाननी है कि वाई इज इट कि जो है लोग उसमें ओवर ईट क्यों नहीं करते? लाइक कार्निवोर पे जो है आप क्या एक्चुअली में ओवर ईट कर ही नहीं पाओगे, या सम पीपल्स डू गो ओवरबोर्ड ऑन दैट, कि उस पे वेट गेन क्यों नहीं हुआ? कार्निवोर डाइट पे, राइट? होना चाहिए, आइडियली होना चाहिए। हम मतलब मैं, मेरी डाइट है ऑलमोस्ट, आई एम गोइंग समवेयर अराउंड 4000 कैलोरीज, आई थिंक सो। ओके। मतलब माय डाइट इज ऑलमोस्ट लाइक 1 kg ऑफ रेड मीट, दैट इज अगेन 3000 कैलोरीज। और उसके डेली? अलावा डेली, उसके अलावा मैं ऑलमोस्ट लाइक 2.5 kgs ऑफ रॉ कर्ड यूज कर रहा हूँ। ओके। तो अगेन इट्स अ वेरी हैवी डाइट, मतलब हैवी, हाई इन प्रोटीन भी है, हाई इन फैट्स है, हम्म। बहुत हाई इन फैट्स है। मतलब अगेन कार्निवोर डाइट इज नॉट सपोज टू बी हाई हाई इन प्रोटीन डाइट, वो हाई फैट डाइट है। अभी भी कैलोरिकली मेरी जो मेजर कैलोरीज आ रही हैं, हम्म। ऑलमोस्ट 60% वो फैट से ही आ रही है, 60 to 70%, अगर कैलोरीज के हिसाब से देखा जाएगा तो। जैसे तो 1 ग्राम ऑफ फैट इज 9 कैलोरीज। हाँ, 9 अगर कैलोरीज, आई एग्री। तो सो लेकिन उसमें फिर इसे कह सकते हैं कि लाइक इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ कीटो डाइट टेकन टू एन एक्सट्रीम? इट इज बट दोनों के फिलोसफी में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके। जैसे कीटो डाइट का पर्पस ये है कि आपके कार्ब्स कम करेंगे, हम आपके कार्ब्स कम करके हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके। बट कार्निवोर का पर्पस है कि प्लांट्स आर ट्राइंग टू किल यू, यू आर नॉट सपोज टू ईट प्लांट्स एट ऑल। तो मैं स्पाइसेस भी नहीं खा रहा, मैं और कोई प्लांट का कोई प्रोडक्ट नहीं खा रहा, जीरो कार्ब अपने आप ही हो गया है वो। हाँ। बट फिलोसफी में डिफरेंस है, कीटो सो इज नॉट दैट लाइक, अगेंस्ट प्लांट्स। अच्छा, सो कोई टमाटर नहीं खाया, कोई, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू मैंने कोई कॉम्प्रीहेंड। स्पाइसेस नहीं खाए, नो स्पाइसेस एट ऑल। सो स्पाइसेस का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है मेनली इसमें? क्योंकि मेरे लिए तो एक हो काफी है, गया मुझे काला लगता है। नमक, एक नमक हो गया, एंड देन हाँ। देर आर कपल ऑफ स्पाइसेस जो मिक्स्ड अप होती हैं। बट फॉर एग्जांपल अगर आप ले लो मीट का जो पाउडर आता है हम्म। मार्केट में, उसमें इतनी क्या परसेंटेज होगी जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है? अमाउंट्स में तो काफी कम है वो, बट बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में अगेन। तो हम्म। इतने कंसंट्रेशन के बाद और प्लस उसकी उसका प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग के बाद भी उसमें कई बार बहुत सारे मसालों में और भी चीज़ ऐसे डाल देते हैं जिससे उसकी लाइफ, शेल्फ लाइफ बढ़े। तो लेकिन अगर आप घर पे मसाले कूट रहे हो, फिर भी हम्म। उसकी उसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फाइटोटॉक्सिन्स हैं उसमें। जैसे अगर हम पेपर को ले, ब्लैक पेपर ले, तो ओके। ब्लैक पेपर में एक कंपाउंड है पाइपरीन। हम्म। पाइपरीन इज अगेन हार्मफुल फॉर यू, वो सेम फाइटोटॉक्सिन है और वो सीड से आया है उसके, और उसमें अभी स्टडीज भी है उसमें, आई कैन पॉइंट आउट टू दिस स्टडीज अभी पाइपरीन वाला। तो पाइपरीन में भी अगेन इतनी सारी चीजें हैं विच हार्म्स यू फॉर दैट। पाइपरीन इज नोन टू इंक्रीज बॉडी हीट इन द बॉडी ना? आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी हीट बाय द वे, क्योंकि सब कहते हैं कि चिकन से होता है, एग से होता है, बॉडी हीट बढ़ती है, बट आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इट वेरी वेल, क्योंकि मुझे बस ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी सीडो नॉलेज ही लगती है। So yeah, there's this study, molecular and pharmacological aspects of piperine as a potential molecule for disease prevention and management. But उसमें end में there are like certain factors which are telling that it also causes inflammation in the body. ओके। तो there are और इसमें जैसे पाइपरीन है, और डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट है, जैसे लाल मिर्च में डिफरेंट होगा, हर चीज़ों में डिफरेंट होगा। हम्म। तो तभी देखते हैं लोग जब, जैसे जिनको एसिडिटी प्रेवलेंट रहती है, जैसे हम्म। मैं अपने मीट में जब ये यूज़ कर रहा था, पहले मसाले वसाले यूज़ कर रहा था, तो उस राइट। पॉइंट पे मेरे को एसिडिटी हल्की सी आ जाती थी, क्योंकि आई वाज ईटिंग सर्टेन लॉट ऑफ क्वांटिटीज ऑफ मीट, और उसके हम्म। साथ मैं उसको प्लांट उससे मतलब गार्निश कर रहा हूँ उसको। तो इट वाज हैम्परिंग द डाइजेशन ऑफ माई मीट एज वेल। उसको भी वो ओके। कहीं ना कहीं स्लो डाउन करती है, क्योंकि फाइटोटॉक्सिन्स आ गए, वो अगेन बाइंड कर जाते हैं मीट के मिनरल्स से और इन सारी चीज़ों से, एंड विच स्लोज डाउन द होल प्रोसेस ऑफ इट। तो मैंने देखा कि व्हेन आई वाज ईटिंग स्पाइस्ड मीट, तो मैं उसको और कम खा पा रहा हूँ, मैं ऑलमोस्ट लाइक 300 ग्राम्स ही खा पा रहा हूँ। बट जब मैं उसको प्लेन कर देता हूँ बिल्कुल, आई कैन ईट लाइक 600 700 ग्राम्स एक बारी में ही। और मैं कमाल की बात बताऊँ, हम्म। आई यूज टू प्ले राइट आफ्टर, कई बार खेलने के बाद, एंड स्टमक एक और ऐसे हो जाता है। बट हम्म। व्हेन आई एम ईटिंग प्योर मीट, प्लेन मीट, मैं उसके एक मिनट बाद ही खेलना शुरू कर दूं, आई हैव नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। नो योर प्रॉब्लम डाइजेशन इज डाइजेशन के टाइम परफेक्ट। पे?
हाँ, मतलब जैसे होता नहीं है, जैसे जो तुम खेलने चले जाते हो एकदम से खा के, और हाँ, वो ऐसा लगता है कि वो खाना बाहर आ गया, ऐसा लगता है पेट में कि दर्द होता है, एसेंशियली पेट में दर्द दर्द होता है, होता है। दर्द होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि राइट। यू नॉट सपोज टू वर्क आउट, ऐसे बोलते हैं वो। हाँ। बट आई हैव बीन डूइंग दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। मैं 5 बजे बास्केटबॉल खेलने जाता हूँ, और कई बार मेरे आई हैव टू गिव माई पेपर्स, तो मेरा मील एक्सटेंड हो जाता है। मील एक्सटेंड होकर मैं 4:45 पे खाता हूँ, और मैं 5 बजे खेल रहा हूँ वहाँ पे। और बास्केटबॉल अगेन इज नॉट इजी। मैं डंक मार रहा हूँ हाँ, वहाँ इट्स पे जा जाके। मैं एक्टिव तीन स्पोर्ट। साढ़े तीन 3 फुट की जंप ले रहा हूँ वहाँ पे। और हाँ। और मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, डाइजेशन इज कम्प्लीटली नॉर्मल, ऐसे क्लीनली बिल्कुल डाइजेस्ट होता है सारा। कोई आई डोंट फील द अर्ज टू वॉमिट और ये सब उसके बाद। तो आई वाओ। मीन सर्टेनली रिलेटेड टू प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स उसको स्लो डाउन कर रहे थे, प्लांट्स उसकी डाइजेशन में उसको हैम्पर कर रहे थे। हमने फाइबर को देखा ही है कि फाइबर स्लोज इट डाउन, but when you're on a meat based diet, हम्म। it's the meat is actually being able to digest it in about 4 hours, almost four to 4.5 hours में आपका मीट डाइजेस्ट होने लग जाता है, हो जाता है ऑलमोस्ट। इंटरनली। एंड हाँ, एंड प्लांट्स एक्चुअली, फाइबर जो प्लांट्स में है वो उसको डिले करता है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर एवोल्यूशनरीली भी देखें तो बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। और अगर हम उसको कार्निवोर डाइट पे भी देखें तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है, उसका कोई पॉजिटिव बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हमें। लेकिन फाइबर का एक आर्गुमेंट ये भी तो दिया जाता है कि जो है उससे आपकी जो बेसिकली जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है वो उसको जो है ना, जो भी टॉक्सिन उसमें पहले के रह गए हैं वो भी क्लियर कर देगा। सबसे Completely बड़ा bullshit. आर्गुमेंट फाइबर। Complete bullshit. It's based out of no proper correlation, no proper causation. किसी भी study, I don't think there would be a study based on that. Let me just see. Fibers. Let's search fibers. Um, cleansing क्लीनिंग effect. योर Cleansing इंटेस्टाइन्स। effect. Yeah, cleansing effect. हाँ। I don't think there would be a study based on that. So there's one on impact of dietary fibers on nutrient management and detoxification of organs. Let's see the so the summary would be, see, fiber supplementation studies in humans have often generated inconsistent results that may be accounted for by differences in resident gut microbes. तो अगेन मतलब यही यही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो गट का माइक्रोबायोम है उस पर थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं वो, बट अगेन वो इनकंसिस्टेंट है। ओके। द डेटा इज इनकंसिस्टेंट ऑन दैट। तो इसके अच्छा, तो मतलब इसके इस डेटा पॉइंट पे हम रिलाई नहीं कर सकते कि जो है आपको फाइबर जो है आई आपका मीन क्लीनिंग कर रहा है इतनी। हाँ, मतलब अगेन इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि वो हम इट्स मोर ऑफ इंट्यूशन बेस्ड थिंग्स। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम फाइबर खा रहे हैं तो वी आर गोइंग टू द लू 3 times a day। तो अगेन हमें ऐसा लगता है कि आवर सिस्टम इज बीइंग क्लेंस्ड, बट असली में हो क्या रहा है, असली में योर बॉडी इज एक्चुअली रिजेक्टिंग नॉन न्यूट्रिएंट्स जो आपने अपनी उसके अंदर डाल दिए हैं। फाइबर इज अ नॉन न्यूट्रिएंट, योर बॉडी कैन हाँ। नॉट एब्जॉर्ब फाइबर, उसमें से कोई तुम्हें उसमें से तुम कुछ नहीं निकाल सकते हाँ, एक्सेप्ट वो थोड़ा आई बहुत। एग्री। थोड़ा बहुत आपकी गट माइक्रोबायोम थोड़ा बहुत उसको फर्मेंट करके उसमें से थोड़ा बहुत फैटी एसिड निकाल सकती है। राइट, which बिल्कुल। again I मतलब I don't see why would you need that when you have like a good source घी और ये सब है आपके पास ऑलरेडी। यूजुअली मतलब व्हाट आई हैव नोटिस इज कि जो है ना, अगर आपकी डाइट में फैट ज्यादा होता है, यू यू विल नॉट बी हैविंग अ लॉट ऑफ गट इश्यूज इटसेल्फ ओनली, कि वो हाँ, निकल जाता है यूजुअली। डिपेंड्स ऑन द फैट आई वुड से। मतलब अगर आप सीड ऑयल्स और ये सब यूज़ करते हो ज़्यादा, तो अल्सर्स और ये सब होने के चांसेस ज़्यादा है वहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगेन लिनोलेनिक एसिड का कंटेंट बढ़ गया है आपकी बॉडी में। हाँ। तो दैट वुड हैव लाइक हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन यू। लेकिन अगर आप एनिमल फैट्स यूज़ कर रहे हो, जैसे मैं अपने बचपन से ही मैं घी और ये सब यूज़ कर रहा था, आई नेवर हैड एनी डाइजेस्टिव इश्यूज बचपन में, नेवर। हम्म। लाइक 10th 12th मतलब सॉरी 10 टिल द एज ऑफ 10 11 12, जब वी जस्ट स्टार्ट गोइंग आउट, फिर हम बाहर का खाना खाने लग जाते हैं स्कूल राइट। वालों से मिलके और ये सब, तब थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, तब थोड़ा सा लेट डाउन्स होते हैं। लेकिन उससे पहले घी में सारा खाना बन रहा था, सब कुछ बन रहा है, एंड मोस्ट ऑफ अस डिडंट हैव एनी डाइजेस्टिव इश्यूज।
हाँ लाइक अब जो ये मतलब ये मूवमेंट चल रही है कि जो है ना सीड ऑयल्स यू नीड टू एलिमिनेट फ्रॉम योर डाइट, इट्स आल्सो लाइक बैड फॉर योर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। वो जो है लाइक अब अगेन देयर इज अ शिफ्ट दैट इज वी आर गोइंग टू सी कि जो आ रही है, और वो ये अब जो है ना लोग रियलाइज करेंगे कि हाँ जो एज ओल्ड एडेज था ना कि जो है घर का घी खाना है, या जो है हम्म। बटर, जो दूध का बटर निकलता है, वो उस पे शायद से अब लोग वापस आएंगे, दे विल अंडरस्टैंड। वो तो मतलब मैं तो वही बता रहा था कि 90s में 2000 में शिफ्ट आ चुका है ऑलरेडी। हमने हाँ देख लिया, एग्जैक्टली। सब सब ट्रस्ट घी को ही करते हैं, ना हम्म। मिले तो अलग बात है। और धीरे धीरे हमने देखा भी है क्या क्या पर्पसेस थे उसके, जैसे सैचुरेटेड फैट्स जो थे उसमें, वी फाउंड आउट कि शुरू से हमारे ऊपर ऐसे प्रोपेगेट किया गया कि सैचुरेटेड फैट्स आर हार्मफुल फॉर अस हार्मफुल। और ये सारी चीज़ें हैं। बट हमने देखा कि 50% जैसे कुछ सैचुरेटेड फैट्स हैं, जैसे बुटेरिक एसिड, पामेटिक एसिड, वो सारे उनके दे आर बीइंग यूज्ड टू क्रिएट ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन्स। वो फैटी एसिड से ही बन रही है, इन इन सैचुरेटेड फैटी एसिड से, जो हमें राइट। घी, कोकोनट ऑयल और इन सब में मिलता है। तो इम्यूनिटी इम्यूनिटी का फंक्शन है, हार्मोनल फंक्शन है, इतनी सारी चीजें आप रिडक्शनिस्ट होकर उसको रिमूव नहीं कर सकते। जैसे इन्होंने बीच में सोचा कि फैट्स ही तो है, सीड ऑयल्स हम्म। फैट ही तो है। रिडक्शनिस्ट अप्रोच है बहुत ही, कि डाइट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स इज अगेन इट्स डिबेटेबल, बट उनने रिडक्शनिस्ट होकर कहा कि हम प्रोटीन ले लेते हैं थोड़ा बहुत चिकन से, या थोड़ा बहुत चिकपीस से, या फिर वेजिटेबल सोर्सेज से, हम फैट इससे ले लेते हैं, हम कार्ब्स इससे ले लेते हैं। राइट। बट अगेन लाइक रिडक्शन अप्रोच नेवर वर्क्स। हमें हमने टोटली डिसाइफर किया ही नहीं है कि हमारे फूड्स में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं और जो हमें रिक्वायर्ड हैं। मतलब रेड मीट में अभी भी कितनी ऐसे कंपाउंड्स हो सकते हैं जो हमने डिस्कवर करे ही नहीं है, विच आर हेल्पिंग अस इन सम वे और द अदर। और बट ये सब पता है कब पता चलता है? हम्म। जब लोग रेड मीट खानी शुरू करते हैं और ऐसी चीज़ें उनको बोली होती है कि ये ऑटो इम्यून्स कभी ठीक ही नहीं हो सकते, ये कभी ठीक ही नहीं हो सकता, या फिर टाइप 2 डायबिटीज तुम्हारा जाएगा ही नहीं है, तुम्हें वर्कआउट करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, एंड इन अ मंथ इट जस्ट गोज अवे, क्योंकि तुमने वो पूरी मशीन ही फिक्स कर दी एकदम से। इंटरेस्टिंग। हाँ। अच्छा हाँ, हम एक मिनट थोड़ा सा वापस आते हैं। लाइक यू मेंशन्ड कि जो है ना इट्स अ वेरी हेवी डाइट, यू आर ईटिंग 4000 कैलोरीज अ डे। सो हाउ कम यू आर लाइक लूजिंग वेट, या फिर यू आर एबल टू लाइक आर यू लूजिंग वेट, या फिर आर यू एबल टू लाइक आई एम बी गेनिंग वेट एबल राइट टू नाउ। मेंटेन? आई एम आई वांट टू लाइक गेन सम मसल मास, सो ओके। वो हो रहा है अभी। बट सो योर बॉडी इज रेगुलेटिंग थिंग्स एज इट गोज। अगर हम्म। आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा प्रोटीन आ रहा है और ये सब आ रहा है, तो आपकी बॉडी उसको एक्सक्रीट आउट कर देगी यूरिन से, और ऐसे फ्लैश आउट हम्म। कर देती है उसे। हम्म। एक्स्ट्रा फैट्स आ रहे हैं, वो आपके मेटाबॉलिज्म से बाहर, यू यू जस्ट एक्सक्रीट देम आउट। ठीक है। बट जब आप उसके मैकेनिज्म में ही चेंजेस आ जाते हैं, जैसे तुम कार्ब्स लेते हो एक्स्ट्रा, या फिर अल्कोहल ले रहे हो, ये सब ले रहे हो, वो योर बॉडी इज नॉट सपोज टू हैंडल दोज मेनी कार्ब्स एकदम से। और वो हम्म। जाते हैं फिर वो आपके लिवर में मेटाबोलाइज होंगे, लिवर में मेटाबोलाइज होके वो फर्दर आपकी बॉडी में एज अ सबक्यूटेनियस फैट या फिर विसरल फैट कैसे भी स्टोर हो सकते हैं। राइट। तो मैकेनिज्म में ही प्रॉब्लम है। व्हेन यू स्टॉप डूइंग दैट, योर बॉडी, एक फंडामेंटल शिफ्ट भी आता है आपका, जब आप एनिमल बेस्ड डाइट पे हो, आप फैट अडेप्ट हो जाते हो। ओके। तो आप यूजली आपकी बॉडी जो आपके ग्लूकोज कार्ब से आ रहा है वो यूटिलाइज कर रही है, आपके ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है वो, उसका उससे आपको वो यूटिलाइजेशन हो रही है पूरी आपकी नॉर्मल डे टू डे वर्किंग में। फैट अडेप्टेशन का मतलब है कि अब आपका बॉडी फैट है, वो इज द मेन सोर्स ऑफ योर एनर्जी, वो ड्राइव कर हम्म। रहा है सब कुछ अब। राइट। और इट हैपेंस लाइक आप धीरे धीरे अपने कार्ब्स कम करते जाओगे, वो अपने आप हो जाता है फिर। तो इस पॉइंट पे आके हम देखते हैं कि यूजली कि एक तो आपकी इंस्टिंक्ट्स है ना, वो अच्छे से रेगुलेट हो जाती हैं, तो आपको ज़्यादा एन भूख लग ही एग्जाम्पल? नहीं पाएगी। जैसे मैं जब आया था इस पे, फैट अडेप्ट अडेप्ट हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट लाइक अ वीक इनटू द कार्निवोर डाइट। राइट। तो 1 मील अ डे वाज हैवी फॉर मी। मैं कुछ ओके। भी नहीं कर रहा था, 1 मील अ डे वाज हैवी फॉर मी, क्योंकि एक तो दो दो प्रोसेस है इसमें, बट आई वुड लाइक कॉन्सेंट्रेट ऑन वन प्रोसेस ओनली यहाँ पे। कि जब व्हेन यू ईट टू फुल सेटाइटी, जब हम्म। आप पूरा पेट भर के खाना खाते हो, उस पॉइंट पे आपकी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है विच इज कॉल्ड लेप्टिन। ओके। तो लेप्टिन आपको फुलफिलनेस वाली फीलिंग देता है कि मेरे को बहुत भूख नहीं लग रही, आई एम सेटिएटेड, हम्म। मेरी भूख मर चुकी है। तो जब मैं कहता हूँ ना कि अल्कोहल की क्रेविंग्स खत्म हो जाती है, लेज चिप्स ये सब खाने की क्रेविंग खत्म हो जाती है, दैट इज लेप्टिन एट वर्क। राइट। और लेप्टिन
लेप्टिन को डिसरेगुलेट क्या करता है, आपका इंसुलिन अगर कॉन्स्टेंटली स्पाइक्ड हो, तो अगर तो आपका अगर इंसुलिन, हाँ, अगर ओके, आप ग्लूकोज लेके जा रहे हो ग्लूकोज बाहर कंज्यूम करे जा कार्ब्स, रहे हो आप हाँ, बेसिकली। तो आपका इंसुलिन उठा रहेगा, आपका हम्म। लेप्टिन रिलीज नहीं होएगा, या फिर वो उसको कहीं ना कहीं दबा के रखेगा। तो और आपको इस, आइडिया नहीं लगेगा, साइकिल बन गई एक तरह की हाँ, कि आप साइकिल बन खाते गई, जा रहे आपको हो। भूख ही लग रही है हमेशा, कॉन्स्टेंटली आप भूख पे हो। तो पॉइंट ये नहीं कि मैं 4,000 कैलोरीज मेरे लिए ज्यादा है। हम्म। पॉइंट ये है कि अगर मेरी जगह कोई और होता ना जो इतना खेल रहा होता, या फिर मतलब जैसे 1 घंटा में खेल रहा हूँ बट वो इंटेंस है, या हम्म। फिर आई लव वर्किंग आउट, मतलब मैं बीच में खेल रहा हूँ, मतलब पढ़ भी रहा हूँ, तो मैं वुड जस्ट लाइक ड्रॉप डाउन, डू 20 पुशअप्स, ऐसे कुछ भी। राइट। तो अगर कोई इतना कर रहा है और वो सेम मेरा वेट या फिर वो सब मेंटेन करना चाहता होता, तो वो वुड बी ईटिंग मच मोर कैलोरीज अगर वो नॉर्मल किसी डाइट पे होता, क्योंकि हम्म। उसकी ईटिंग रेगुलेट नहीं होती। वो भूखा फील करते हैं, या तो वो बहुत ही डिसिप्लिनेरियन होगा, तो वो हम्म। कर सकता है, अदरवाइज नहीं, पॉसिबल नहीं है। इंटरनली आपके हार्मोनली पॉसिबल नहीं है वो, कॉन्स्टेंटली अगर आप अपने आप को कार्ब्स 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 जैसे फीड कर रहे हो। तो तभी हम्म। बॉडी बिल्डर्स यू विल सी लाइक 6 मील्स अ डे, बट एट द सेम टाइम यू विल सी शॉन बेकर जो कार्निवोर इन्फ्लुएंसर है, राइट। वो इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक 260 पाउंड्स, दैट्स हाँ, 120 ही इज अ 130 बिग डूड, ही केजीज। इज अ बिग डूड। हाँ, तो वो ऑलमोस्ट लाइक इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू दीज बॉडी बिल्डर्स, और वो 2 मील खा रहा है बस। मेक्स नो सेंस कि ऐसे इक्वेट कैसे कर सकते हैं हम, एक एक बॉडी बिल्डर जो 6 मील ठूस रहा है, और एक शॉन बेकर जो 2 मील खा के सिर्फ वही सेम बॉडी मेंटेन कर रहा है एट फिफ्टी लेकिन फाइव एज वेल। लेकिन ये थोड़ा सब्जेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ना जैसे यू मेंशन कि ना यू आर हैविंग 1 kg ऑफ चिकन अ डे, राइट, यू आर मटन, डिस्ट्रीब्यूटिंग इट इन 2 meals और 3 meals, या सारा एक साथ? 2 मील, 2 मील मोस्टली, मतलब आई एम डूइंग 600 मतलब 1.2 kg। अरे भाई साहब, सो लाइक एक नॉर्मल आदमी को कितना खाना पड़ेगा कि जो है ना वो बोले कि नाउ आई एम फुल, इससे ज्यादा नहीं यार, खाने की जरूरत? एक मील में तो यू कांट गो मोर देन 600, मतलब ओके। इफ यू लाइक, मतलब मैं फास्ट करके आता हूँ कभी, तो मे बी आई गो 700 800, लेकिन फिर वो 1 मील अ डे ही है मेरे लिए। ओके। बट आई डोंट थिंक 600 से ऊपर कोई जा सकता है एक मील में, अगर वो रेगुलर 2 मील्स अ डे या 3 मील्स। तो मतलब मैं तो नहीं गया आज तक। मैं, आई एम लाइक 6'3", 94 केजीज, तो प्रेटी मच हाई, गुड बिल्ट, और मतलब आई कुडंट गो 600 700 इज, उससे ऊपर पॉसिबल नहीं है। तो लाइक देयर गाइज हु आर, जो कम्युनिटी में है, वो हम्म। देयर अराउंड लाइक, दे आर लाइक 5'8", 5'7", हम्म। और वो सिर्फ दिन का 600 ग्राम मीट ही खाते हैं बस, और अगर उससे बाद में एक और भूख लग जाती है थोड़ी बहुत, तो 3 या 4 अंडे एट मैक्स। My girlfriend at the time, about 6 months back, so we were going out on a trip, and हम्म। she could only have like 4 या 5 eggs पहले अपने मील में, ओके। and but like again those things are not adulterated with carbs, कोई ऐसे मैं ब्रेड नहीं दे रहा साथ में, ये सब नहीं कर रहा, it was just pure eggs, प्योर एग्स। प्योर एग्स। तो एक मील में ये खा पा रही थी मुश्किल से, और अगली मील में थोड़ा सा, सेकंड मील चिकन और ये सब, एंड दिस इज अ पर्सन हु ईट्स लाइक 3 मील्स अ डे एंड येट इज हैज अनीमिया और ऐसी ऐसी चीजें हैं, एंड कॉन्स्टेंटली उसको माइग्रेन होता था, ये सब चीजें होती थी। तो इट ऑल वेंट अवे, migraine went away, the need to eat 3 meals 4 meals went away. वाओ। लेकिन दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। और लेकिन उसमें ना मेरे को जो चीज समझने की आ रही है कि ना एक एवरेज आदमी लाइक हाउ मच ऑन ए पर डे बेसिस आर यू स्पेंडिंग ऑन रेड मीट मेनली? Oh, again, got a lot of stick on that कि elitist diet है बहुत ही, और सिर्फ elite लोग ही कर सकते हैं, but everyone हाँ, has ये their है tolerance. यार थोड़ा, मतलब क्योंकि लाइक It's not ऐसे, मैं ये नहीं कह नहीं रहा कि एलीट नहीं बोलूंगा मैं, बट इट इज नॉट समथिंग दैट मोस्ट पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया विल बी एबल टू लाइक अफोर्ड I'm ऑन ए on your नॉर्मल side, डे। I'm on your side here. हाँ। मैं भी यही कह रहा हूँ कि I mean, it's not something जो entirely founded ही नहीं है किसी चीज़ पे, it has its basis. I understand meat is costly. इधर मैं अगर लोकल बुचर से भी ले रहा हूँ, it's almost costing me around 660 a kg, ओके। and which अगर मैं 1 kg दिन का ही खा रहा हूँ, तो it translates to roughly around, अगर मैं इसको 1.2 लेके करूँ, तो it would somewhere cost me around 21,000, सिर्फ मीट ही, एग्जैक्टली a एक month मंथ। a month. हाँ। हाँ। But again,
you could do it on some foods that are way cheaper. जैसे बफ में बहुत लोग करते हैं, दे यूज बफेलो मीट. हम्म. तो वो उसको यूज करते हैं, वो समवेयर अराउंड 300 या फिर लोगों को 260 ऐसे कभी मिल जाता है अ केजी. हम्म. तो दैट विल ट्रांसलेट टू 9,000 रुपीज अ मंथ. दैट इज अ लॉट चीपर. बहुत लोगों ने ऐसे भी किया है, सिर्फ एग्स, हम्म. एक मील एग्स कर लिया और एक मील रेड मीट कर लिया है, which again reduces the cost significantly. मतलब 12 से 14 हज़ार पे आ जाती है वो. बट अगेन मतलब अगर देखोगे ना 24, 25, 30 पे, people who are supposed to be way fit, वो रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, are dying हम्म. of heart attacks. And हम्म. not much has changed, not much has changed. हम स्ट्रेस इतना नहीं है, बहुत ज्यादा है. पहले भी स्ट्रेस सेम सेम अमाउंट पे होता था. देयर यूज्ड टू बी वॉर्स, फैमिन्स, एवरीथिंग. गांव राइट. में होता रहता था बार बार. और चेंजेस एंडोक्राइन डिसरप्टर्स भी हो सकते हैं थोड़े बहुत, बट मेजर चेंजेस आर एक्चुअली इन योर डाइट. तुम्हारी डाइट में जो पेस्टिसाइड ये सब इंक्रोच हो रहे हैं, और जो प्लांट फूड्स हैं वो, हमने एनिमल न्यूट्रिशन बिल्कुल बाहर निकाल के फेंक दिया है. हमने कहा घी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बटर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हर चीज़ से डर के भाग रहे हैं. एंड ये हमारे उसमें तो क्रीप इन कर ही गए, हमारी सेगमेंट में, हमारे लोगों में, मतलब मेरे और तेरे एज ग्रुप में. हाँ. एंड इवन जिन लोगों की लाइफ बनी थी एनिमल न्यूट्रिशन से, मेरे पेरेंट्स और ये सब, जिनने जिंदगी भर खाया ही कुछ नहीं है, सिर्फ एनिमल न्यूट्रिशन खाया है, सिर्फ बटर खाया है, सिर्फ घी खाया है, हम्म. उनके साथ भी सेम चीज़ हो रही है. उनके साथ भी ये सेम फियर साइकोसिस हो रहा है कि तुम बटर ज़्यादा खाओगे तो तुम्हें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और ऐसी ऐसी चीज़ें बिना बात करके फैला रखी है, जो जिनका कोई कोई रैशनल बेसिस नहीं है. फैट के अगेंस्ट तो प्योर प्योर मतलब लॉबिंग हुई थी ना फैट के अगेंस्ट, हाँ, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री तो लाइक अब तो ये बनी वेल ही नोन फैट को वाले हुआ है कि हाँ, उन्होंने हाँ. जब फैट कम करा एसेंशियली फूड के अंदर का टेस्ट चला गया. फैट इज समथिंग दैट एड्स टेस्ट एंड फ्लेवर टू योर फूड. उन्होंने बोला कि जब फैट खत्म हुआ उसको हम तुमने इविल डिक्लेयर करा, तो शुगर को आगे तुम्हें उसे रिप्लेस करना पड़ा. और ट्रू. इतने सारे हार्मफुल इफेक्ट्स तो हम शुगर के देख रहे हैं कि वो कितना ज्यादा उसमें केमिकल प्रोसेसेस बनते हैं. हाँ, और डाइटरी गाइडलाइंस में देखेंगे हम, तो डाइटरी गाइडलाइंस में जिनने वो ट्रांसमिट करती है, उनमें से कुछ साइंटिस्ट है, दे हैड क्लियर रिलेशंस विद केलॉग्स एंड ये सब, जो एग्जैक्टली. ब्रेकफास्ट सीरियल बना रही थी कंपनीज. तो अगेन मतलब आई डोंट नो इट वाज प्योर करप्शन और एनीथिंग, बट It was capitalism at play. It was pure हाँ, capitalism at play. could be that, but like could be more than that. Could be like, could be, you can go the conspiracy theory route यहाँ पे भी, कि they're trying to make men women weak, कुछ भी बोल सकते हैं, but again they did that, they ये जो did रेड that. पिल वाला वो साइड चले जाएंगे. हाँ, मतलब किसी भी साइड जा सकते हैं यार इसमें. आई मीन मैं नाउ दैट आई एम एट दिस साइड ऑफ द डिबेट, आई वाज लाइक हार्डकोर लेफ्टिस्ट पहले, बट नाउ दैट आई सी थिंग्स दैट आर हैपनिंग, जैसे वैक्सीन मैंडेट में, हम्म. मैं बीइंग अ लिबरल थोड़ा बहुत उस टाइम पे, आई वाज लाइक कि नहीं, सबको लगानी चाहिए, सबकी हेल्थ के लिए वो है. बट मेरे को भी कॉन्स्टेंटली एक डाउट था कि अ, सबको लगानी चाहिए, बट अगेन वो मैंडेट कंपल्सरीली होना चाहिए. आई डोंट सपोर्ट दैट. हाँ. सो डाइटरी गाइडलाइंस तुम्हारे भी पास हुई, चॉइस दे वर होनी जस्ट चाहिए. गाइडलाइंस. तो हम्म. आई एम हैप्पी कि दे वर जस्ट गाइडलाइंस, कोई कंपल्सरीली नहीं कहा. बट लेकिन जब डॉक्टर्स उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तब इट्स गेटिंग सीरियस देन. जब डॉक्टर्स और ये सब आके आपका न्यूट्रिशन चेक कर रहे हैं कि ये करो और ये करो और ये करो. एंड इंडिया में एक्चुअली में लोगों को न्यूट्रिशन लाइक एटलीस्ट डॉक्टर्स का ना, लोग सोचते हैं कि डॉक्टर्स को पता होगा अबाउट न्यूट्रिशन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट दैट अवेयर. लाइक यार तुम्हारे कितने सारे डॉक्टर्स की जो यार तोन निकली हुई होती है, तुम उन्हें देख के कैसे आह, बोलोगे कि इसको इसको न्यूट्रिशन के बारे में पता होगा. अगर ये फिट होता तो तुम एक सेकंड के लिए सुनोगे उसकी बात. यार हम ना वी हैव गॉन टू डीप डीप इनटू दिस स्पेशलाइजेशन राउट. तो स्पेशलाइजेशन में हम वी हैव फॉरगॉट द गोल्स दैट वर एक्चुअली देयर. तो जो पहले देखेंगे ना हम, जो चिकित्सक होते थे हमारे टाइम के, चिकित्सक लिव्ड क्लोज टू द लैंड. हमारा जो एंशियंट आयुर्वेद है, आयुर्वेद हमसे कहता था कि उसकी मतलब मोस्ट ऑफ चीजें मैं नहीं मानता उसको, मेरे को आई कंसिडर देम स्यूडो साइंस माई सेल्फ, कि ये शीलावती खाओ, ये सब खाओ. आई डोंट अग्री टू दैट, ऑल ऑफ दैट. ओके. बट देवर द पार्ट अबाउट लिविंग क्लोज टू द लैंड, सनलाइट और ग्राउंडिंग. हम्म. जैसे आयुर्वेद में एक प्रैक्टिस होती थी जिसमें आपको पूरा ग्राउंड के अंदर वो बरी कर देते थे, सिर्फ आपका सर बाहर होता था, तो आपकी पूरी हम्म. बॉडी ग्राउंडेड होती थी. और मेरे पापा ने वो किया हुआ है, एंड इट्स अ वंडरफुल फीलिंग. आपकी एक्स जॉइंट्स और ऐसे आपको लगता है कि आपने इमिजिएटली आप एक क्रायो चेम्बर से बाहर आए हो.
क्रायो चेम्बर इज लाइक -70 डिग्रीज, हाँ, जो फुटबॉलर्स यूज करते हैं. राइट. That's how that's the kind of anti-inflammatory effect it had. लेकिन आज के डॉक्टर्स हैं, मतलब दे आर आस्क्ड टू स्टडी मोर अबाउट इन डेप्थ थिंग्स दैट दैट हैज एन इफेक्ट. अगर कोई बहुत ही सीवियरली अपने आप को सीवियरली बेसिकली डिजीज्ड है, हम्म. तो वी लाइक इन डेप्थ इनटू वेंट्रिकल्स, एओर्टिक, मतलब जो आर्टरीज है, वेंट्रिकल्स, एवरीथिंग, वी आर टू डीप इनटू दैट. हम स्टेंट्स डाल रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं. वी हैव लर्नड आवर वे आउट ऑफ आवर बैड डाइट्स आवरसेल्व्स. हम्म. इतनी स्पेशलाइजेशन है. एंड मोस्टली डॉक्टर्स, मतलब दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्फ. खुद ही मोटे वोटे सब हैं. आई अंडरस्टैंड, मे बी सीड ऑयल्स भी खा रहे होंगे, बट अगेन इट्स नॉट देयर फॉल्ट. इट्स एब्सोल्युटली नॉट देयर फॉल्ट. इफ दे वुड हैव नोन बेटर, दे वुड हैव डन बेटर. लेकिन हाँ, आई एग्री. उनको अगर 30 इयर्स में, 30 इयर्स तो भाई बहुत कुछ भी नहीं है यार. अगर 2 साल की प्लांट बेस्ड एथिकल नॉलेज लेके कोई घूम रहा होता है, उसके भी कन्विक्शंस चेंज करने इतने मुश्किल होते हैं आजकल. बहुत मुश्किल होता है. मतलब मैं सही में आई हैव फेल्ट दैट नाउ, कि आई हैव मेट पीपल जो प्लांट बेस्ड है, हम्म. और उनकी आर्ग्यूमेंट्स ही ऐसी है जो इसको, यू कांट जस्ट डिफीट दोज आर्ग्यूमेंट्स बिकॉज दे आर नॉट एन आर्ग्यूमेंट इन इन स्पेस एंड टाइम. वो आर्ग्यूमेंट हवा में बना रखी है उन्होंने. तो दे विल टॉक अबाउट स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ द बीस्ट, कि तुम किसी एनिमल को खा रहे हो तो उसकी एक स्पिरिचुअल एनर्जी है. यू कांट, इफ यू किल इट, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हारे अंदर आ जाएगी. दी एंड यू डोंट हैव अ वे अराउंड दिस. So on You average, like can't Twitter create a पे way around this. how much time, because I know you are pretty active on Twitter, तो Twitter पे इस चीज में कितना ज्यादा टाइम जाता होगा? Like कुछ लोगों से तो आर्गुमेंट हो ही जाता होगा मैं कभी कभार. आई डोंट आर्ग्यू एनीमोर. मैं आई जस्ट गो देयर. मैं अपनी बातें बताता हूँ. मैं बताता हूँ कि दिस इज हाउ आई फील, दिस इज हाउ आई डू. एंड पीपल हु आर एक्चुअली courageous, they go ahead and take that decision. जैसे when I started out, I had like 30-40, मतलब started 200 followers थे तब. तो people who were following me since the time I had like 200, 300, 400, 500 followers, हम्म. they were like courageous enough to let see and try it out in Try India. it out. They tried it out. They did that for 3 months, and now they have come back. कि this happened. जैसे आनंद नागू is a person that I that used to know me from my community. मैं फरीदाबाद में अच्छा. रहता हूँ, तो वो फरीदाबाद में ही था, and he used to be friends with my friends. हम्म. तो he started out when I was like 500 followers only, और उसने मेरी चीजें सुन के उसने उसको आगे further implement किया. And he was a hardcore plant-based eater. उसको सात्विक डाइट और ये सब फॉलो करता था. वो परेशान था अपनी जिंदगी से. वो Okay. लिटरली परेशान था. वो उसकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और ये सारी, टू डीप इनटू दैट रट. Okay. And we have seen the clear correlation between mental health and animal based eating. Animal based eating में हमने देखा है कि मैग्नीशियम, पोटेशियम और ये सर्टेन चीजें हैं, when you start absorbing them, this is what regulates your mental health actually. वो हम्म. एब्जॉर्प्शन से ही आपकी मेंटल हेल्थ में, मतलब आपके ब्रेन सेल्स और ये सब आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं. तो there's also the studies which says that plant-based vegans and vegetarians have 50% higher risk of psychological disorders compared to animal-based eaters. तो Interesting. ये सारी चीजें देख के लोगों ने देखा कि वाओ, मतलब एकदम से इतने चेंजेस आए हैं. एंड आई मीन, ट्रस्ट मी, चेंजेस इन योर बॉडी विल बी द लास्ट थिंग दैट विल बी हैप्पी अबाउट. कि मेरी एब्स आ गई और ये सब होगी, लास्ट थिंग दैट विल बी हैप्पी अबाउट. यू यू विल फील द एलिवेटेड एनर्जी फर्स्ट, कि अब मुझे कुछ खाने की जरूरत नहीं है. 24, मतलब मैं आई कैन डू अ 24 आवर फास्ट विदाउट इवन थिंकिंग. मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि मुझे भूख लगी है नहीं लगी है, ऐसे कुछ भी. मतलब इट जस्ट चेंजेस योर आउटलुक. पूरा आउटलुक बदल देता है तुम्हारा एकदम से. कि मैं अभी कंपल्सिवली खा रहा हूँ रोज. मैं सोच नहीं पा रहा जो मैं खा रहा हूँ उसके बारे में. मैं फील नहीं कर पा रहा क्या खा रहा हूँ मैं. मतलब आई एम जस्ट पुटिंग मोर मोर एंड मोर शुगर इन. फिर मैं स्पाइस, मैंने कुछ चाट खा लिया, ये सब खा लिया. आई एम नॉट इवन थिंकिंग उससे पहले. अब एवरीथिंग दैट आई ईट हैज अ पर्पस. It's a signal to my body कि you need like protein, you need like fat. regulations हो रही है, हार्मोन्स अप रेगुलेट हो रहे हैं जब भी मैं खा रहा हूँ. ऐसी चीजें हो रही हैं. तो So you can feel that internally now. वो
You I feel that immediately that thing touches on my tongue. जैसे uh, when I eat like बीच में नमकीन एक दो बार कभी हम्म खाई है ऐसे, हम्म तो आई कैन फील दैट इमीडिएटली ऐसे खाते ही ऐसे फील होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज दैट बिटर टेस्ट. ओके आई कैन वो दैट रिमेन्स इन माई माउथ नाउ, बिकॉज नाउ आई हम्म रिकग्नाइज कि प्लांट फूड्स क्या क्या कर सकते हैं. वो मुझे बिटरनेस फील हो रही है जो पहले नहीं होती थी. ओके तो और प्लस मतलब व्हेन यू क्लेंज योर सिस्टम ऑफ ऑल दीज फाइटोटॉक्सिन्स, 3 महीने से तुमने कोई प्लांट्स नहीं खाए हैं, सारे फाइटोटॉक्सिन्स बाहर हैं, योर बॉडी इज फीलिंग फ्रेश एज एवर. तब तुम वो प्लांट फूड्स वापस देते हो, वो तुम्हारे स्टमक में फिर से जाते हैं, वो फिर से तुम्हारे स्टमक को मतलब योर इरिटेट पीएच इज करते हैं सपोज्ड टू बी 1.5. हाँ लेकिन जब तुम प्लांट फूड्स दे रहे हो उसका पीएच यू डोंट रिक्वायर 1.5 टू डाइजेस्ट दैट. तो वो डिफरेंसेस कॉज कर रहा है अगेन. और इवन फिर वो जब तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन उधर जाता है, तो इट हम्म हैज बीन शोन कि जैसे उसमें लेक्टिन्स है और ये सारी चीजें है ना, वो तुम्हारी गट की लाइनिंग है. गट की लाइनिंग इज लाइक अगेन अ ब्रिक वॉल. हाँ ठीक है, तो उसमें बीच बीच में जॉइंट्स होते हैं. जॉइंट्स वुड बी द गैप बिटवीन दोज ब्रिक्स, इफ आई मेक यू अंडरस्टैंड इन लेमैन हाँ हाँ टर्म. आई एम एबल टू हाँ. विजुअलाइज तो वो क्या करते हैं लेक्टिन्स, वो जाके वो बीच में गैप्स है ना, उन गैप्स में या तो फंस जाते हैं या फिर गैप्स को तोड़ देते हैं. तो गट लाइनिंग में ही गैप्स आ जाते हैं तुम्हारे. एंड somehow that is related to the autoimmune conditions that are happening. क्योंकि तुम्हारी गट ओके लाइनिंग में गैप्स हैं, गैप्स में लेक्टिन्स हैं या फिर डिफरेंट फाइटोटॉक्सिन्स हैं, और वहां पे तुम्हारी बॉडी अपने आप पे अटैक कर रही है, अपनी खुद की गट लाइनिंग पे हम्म अटैक कर रही है टू गेट दीज फॉरेन पार्टिकल्स आउट. और तभी हम देखते हैं कि जैसे हम ऑटोइम्यून कंडीशंस में एनिमल बेस ईटिंग कर रहे हैं, जैसे सिर्फ रेड मीट खा रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, तो यू विल सी अ क्लियर कोरिलेशन कि वो सारे या तो रेमिशन में जाती है उनकी ऑटोइम्यून कंडीशन, या इट हम्म कंप्लीटली वैनिशेस अवे. जैसे मेरी एक्जिमा था, वेंट अवे. लोगों की सोराइसिस एनीथिंग गोज अवे. वाह क्योंकि एसेंशियली अभी जो है लोगों को ना थोड़ा सा आइडिया अब जाके हो रहा है कि जो है ना जितने भी आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं वो आपके गट से आ रहे हैं और अगर आपकी गट की लाइनिंग एसेंशियली अगर ब्रेक हो रही है बिकॉज ऑफ दिस थिंग सो एसेंशियली वही हो रहा है कि जो है यू आर फॉलोइंग सिक सो जो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ लाइक दिस ब्लू माई माइंड एक्चुअली कि वो आपकी अगर गट लाइनिंग का रिमिशन हो गया देन यू आर ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइजिंग योर हेल्थ जो भी आपकी बॉडी है योर हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ. मतलब हम्म यू कैन तो बहुत कॉमन है आपकी, लाइक मोस्ट ऑफ आवर नर्व एंडिंग्स आर स्ट्रेट इन स्टमक. स्टमक और हमारी गट लाइनिंग के आसपास रहती है वो, तो व्हाटएवर यू ईट एक्चुअली इन्फ्लुएंसेस योर मूड. हम्म तो again when you're like unhealthy, your stomach is you have infection in your stomach, that's where your mood down regulates. तो तब दैट्स व्हाई इट हेल्प्स एकदम से कि मेंटल हेल्थ में इंप्रूवमेंट्स भी मेरे ख्याल से इसी वजह से ही आ रही है सारी की सारी की. मोस्टली इट हैपेंस लाइक 1 or maybe 2 months into carnivore diet, जब जहाँ पे प्रॉपर वो हीलिंग हो जाती है. उस राइट वो जब हीलिंग प्रॉपर होने के बाद यू कैन लाइक स्लोली रीइंट्रोड्यूस सम प्लांट फूड्स. अगर किसी को नहीं करनी प्रॉपर कार्निवोर, तो वो कर सकते हैं इंट्रोड्यूस. बस मोस्टली मैंने देखा है कि जो लोग वापस रीइंट्रोड्यूस करते हैं ना, हम्म they don't flurry well based on autoimmune conditions. Autoimmune conditions वापस फेयर अप हो जाती हैं, तो autoimmune conditions के लिए you have to like permanently be on the carnivore diet. लेकिन वो ऐसा क्या खाते हैं लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम फॉर एग्जांपल टोमेटो लेते हैं टोमेटो इज अ प्लांट बेस्ड फ्रूट फ्रूट बोले या वेजिटेबल बोले वेजिटेबल ही है टोमेटो तो. वेजिटेबल है हाँ. तो वो एसेंशियली एक टेस्ट देती है एंड आपको जो है ना आपके रेड ब्लड सेल्स के लिए इट्स गुड फॉर इट ये अगेन बोला गया दैट्स है डिस्प्यूटेबल. जितना आई मीन पढ़ाया गया आई एम नॉट सेइंग कि मुझे पता है उसके वो बारे में अभी तक हमें जितनी नॉलेज दी गई थी उसके बारे में बता रहा हूँ मैं वो पढ़ाया कुछ बेसिस पे गया हुआ है कि मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स बता दिए कि ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें. बट अगेन जो जो भी सारे न्यूट्रिएंट्स है हम्म दैट आर फाउंड इन मच मोर क्वांटिटी एंड मच बेटर क्वालिटी इन रेड मीट. हम्म तो एक तो मतलब क्लियर नीड बेसिस है कि डू वी एक्चुअली नीड दोस टोमेटोज. उसमें कुछ ऐसे स्पेशल कंपाउंड है जिसके बिना हम रह सकते हैं नहीं रह सकते, ऐसा कुछ है. राइट राइट वो आई डोंट थिंक वो है कुछ भी. एंड the only point that is being put up, जो कॉन्स्टेंटली बार बार बोलते हैं, इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड एज हॉर्मीसिस. ओके तो हॉर्मीसिस इज समथिंग कि जैसे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में यू इंट्रोड्यूस
अ टॉक्सिन, थोड़ा सा, बहुत छोटी हम्म क्वांटिटी में। और वो हम्म जब बहुत थोड़ी क्वांटिटी में होता है, your body actually adapts and works against it, tries to neutralize it. ओके तो धीरे धीरे आपकी उसकी लिमिट बढ़ती जाती है कि आप अब और यूज कर सकते हो, और कर सकते हो, और कर सकते हो। एंड दैट्स हाउ योर बॉडी अडेप्ट्स, सर्वाइव्स एंड मूव फॉरवर्ड। बट हमने देखा है कि जो प्लांट टॉक्सिन से आप हॉर्मेसिस कर रहे हो, उसके उसका सब्स्टिट्यूट है समथिंग व्हिच यू कैन डू फिजिकली। फिजिकली में रनिंग कर रहे हो आप, रनिंग स्टिमुलेट करती है वही हॉर्मेसिस पूरे प्रोस्पेक्ट को। उसके बाद आप कोल्ड वाटर शावर्स ले रहे हो, आप हम्म सोना ले रहे हो, ये सब ले रहे हो, हीट एक्सपोजर है, कोल्ड हम्म एक्सपोजर है, ये सारी चीजें हैं। दिस डज द सेम, और विदाउट द प्लांट टॉक्सिन्स नाउ इनटू द पिक्चर, जो आपको गट डिसरप्शन ना करे, जो आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी को डिक्रीज ना करे, ये सारी राइट चीजें हटा दे। नाउ इट्स सिग्निफिकेंटली बेटर प्रोस्पेक्ट। और फाइबर अगेन, fiber should be fiber should have a negative connotation the next time we hear about it. अब इसकी इतनी पॉजिटिव कॉनोटेशन है कि फाइबर कितना बढ़िया है, फाइबर से चीजें सॉल्व हो जाती हैं, ये सब हो जाता है। मैं आई बीन ऑन अ हाई फाइबर डाइट एंड वाज द वर्स्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। और मुझे 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 लोग बार बार बोलते हैं कि जितना हाई फाइबर लोगे उतना बेटर यू विल पूप। बट आई फेल्ट आई फेल्ट सो बैड ऑन दैट। I felt so bad, like I had to go. I went to 3 times a day. I went to the loo, and I was like हम्म happy about it कि भाई हाँ, the system is being cleaned और ये वो। सब साफ हो रहा है But it it just doesn't add up अच्छे से, because you know the feeling. How does it feel? क्योंकि हर बार whenever I used to go, like I felt constipated. I felt something was weird. It राइट didn't feel like I was, my gut never felt well उस पे। तो तभी मतलब वी हैव सीन कि जब फाइबर का यूज कहाँ पे अच्छा है, वो सिर्फ स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट के साथ है। जो स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट में तुम इतने कार्ब्स ठूस देते हो, इतने शुगर्स डाल देते हो जो इमीडिएटली डाइजेस्ट हो रहे हैं, जिनको टाइम ही नहीं लग रहा, उसमें तुम अपने आप को फाइबर देते हो जो उसको स्लो डाउन करती है प्रोसेस को, तब इट हेल्प्स। वरना एवोल्यूशनरी प्रोस्पेक्ट से फाइबर नेवर हेल्प, फाइबर वाज नेवर सपोज टू हेल्प। फाइबर में एवोल्यूशनरी प्रोस्पेक्ट क्या है? एवोल्यूशनरी प्रोस्पेक्ट है कि मैं हंटिंग कर रहा हूँ, हम्म मेरे को कभी भी कोई जानवर आके मार सकता है, मेरे हम्म को अपनी ट्राइब को प्रोटेक्ट करना है। हम्म अब मैं जा रहा हूँ, मैंने एक एनिमल मारा दोपहर के 1 बजे, हम्म मैंने सपोजिटली एक मंकी मार लिया, मैं मंकी हम्म लेके आ रहा हूँ अपने पास, मेरी पूरी ट्राइब ने खाया उसे। अब मैं फाइबर खा के उसकी डाइजेशन स्लो डाउन कर दूं, 12 घंटे की कर दूं, ताकि मेरी ट्राइब पे कभी कोई हमला हो जाए, कुछ भी हो जाए, या फिर मुझे कहीं फिर से भागना पड़े, तो मैं वीकर हूँ, मैं स्लोअर हूँ अब, क्योंकि मेरी बॉडी डाइजेशन मैं में इतना वल्नरेबल हूँ वेस्ट है, हाँ मैं मोर वल्नरेबल हूँ। हम्म तो डजंट मेक सेंस एट ऑल। तो इट इज ऑलवेज गुड एवोल्यूशन व्हेन यू कैन डाइजेस्ट योर फूड क्विकली। इंटरेस्टिंग तो और एक बात इधर भी आते हैं थोड़ा सा कि ना स्पाइसेस पे ना थोड़ा सा वापस आते हैं फॉर एग्जांपल यू मेंशन कि ना ओरेगेनो भी जो है ना तुम्हारे को नहीं खाने की जरूरत एंड हम्म ओरेगेनो हैज नो न्यूट्रिशनल वैल्यू व्हाटसोएवर वो बेसिकली लीव्स होती हैं हम्म राइट सो what happens if you are introducing that just for the sake of taste in your food क्वांटिटीज मैटर अ लॉट। okay तो um, like जैसे sprinkling on top हाँ मतलब क्वांटिटीज जस्ट, अगर इफ यू जस्ट स्प्रिंकलिंग, वेल एंड फाइन, यू कैन डू इट। hmm बट अगेन मतलब क्वांटिटी बहुत कम है। तो क्वांटिटी इतनी कम, मतलब कितना हुई होगा यार, वो 0.1 ग्राम ऐसे कुछ होगी मुश्किल hmm से। और 100% हाँ एंड मतलब 1 ग्राम 2 ग्राम, इससे ऊपर क्या ही हो सकता है वो। तो इस पॉइंट पे आगे, इफ इट्स वर्किंग फॉर यू, यू डोंट हैव एनी ऑटो इम्यून कंडीशंस, यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स, hmm खा लो यार, मतलब थोड़ा सा टेस्ट यूज कर लो, कोई कोई ऐसी कुछ आफत नहीं आ जाएगी। बट अगेन टू बिलीव होलिस्टिकली कि मतलब इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है, इसमें सम सॉर्ट ऑफ मेडिकल एड है ऐसी चीजों hmm को खाने में, आई थिंक दैट्स डिबेटेबल। नहीं अगेन लाइक व्हेन यू आर जस्ट टॉकिंग प्लेनली फॉर द सेक ऑफ टेस्ट कि तुम यू कैन हेल्थ के हैव इट, प्रोस्पेक्टिव से देख ही नहीं रहे हो तुम इसको कह रहे हो कि ना चलो ठीक है ये थोड़ा सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ टेस्ट के लिए टेस्ट कि में तो यू कैन हैव एनीथिंग, टेस्ट में यू कैन हैव लाइक, देन अगर टेस्ट की बात शुरू हो गई है तो यू कैन हैव एनीथिंग, देन देयर इज नो कंट्रोल ओवर योर टंग। आई हैव नहीं सीन पीपल जो प्रोपेगेट टेस्ट से शुरू करते हैं, रियलाइज कि स्पाइसेस तो खा ही लेती हूँ थोड़ी बहुत, फिर वो थोड़े टाइम में वो देखते हैं कि कीटो वाले चीट पील्स होते हैं जो, वो आ जाते हैं फिर हम्म इनटू द पिक्चर,
कि कीटो बर्गर आ गया, लाइक अ प्रॉपर कीटो बर्गर, फिर कीटो नहीं चीज वो केक, सब तो ये दैट सब। इज लाइक, वो तो एकदम क्रैप है। आई टोटली अग्री ऑन दैट कि जो है ना तुम कर रहे हो, या तो अगर तुम फॉर एग्जांपल लेट्स से कि जो है ना तुमने 3 मंथ्स 4 मंथ्स कार्निवोर करा, लाइक डू पीपल टेक अ ब्रेक ऑन दैट? 4 मंथ्स 5 मंथ्स करा, दे साइक्लिकल, टेक अ आई ब्रेक? डोंट थिंक, आई डोंट थिंक किसी ने कोई साइक्लिकल करता है, मतलब बहुत कम लोग देखे मैंने जो साइक्लिकल करते हैं। मोस्ट ऑफ ओके। द पीपल अंडरस्टैंड कि दिस इज द प्रॉपर न्यूट्रिशन। हम्म। मतलब मेरे से तो काफी क्लियर है मेरे को तो अब कि मैं आई कांट बी ऑन अ नॉर्मल डाइट आफ्टर दिस, ओके। क्योंकि आई रिकग्नाइज कि न्यूट्रिशन कुछ नहीं है उसमें, हम्म। इट्स जस्ट लाइक किलिंग योरसेल्फ स्लोली। आई मीन ओके। दैट्स हाउ आई कैन डिस्क्राइब इट एट बेस्ट। तो ठीक है, कुछ चीजें तुम्हें हेल्प कर रही हैं, ये सब कर रही हैं, बट अगेन मतलब यू विल बी लाइक जस्ट सर्वाइविंग देन। हम्म। how does it feel when you could just run, play, do anything? If you like picked up one dumbbell, एक डंबल उठाते हो और उसका भी तुम्हें मैक्सिमम रिजल्ट मिलता है, इट फील्स सुपर ह्यूमन, इट फील्स लाइक यू कैन डू एनीथिंग। मतलब व्हेन आई प्ले, और वहां पे जो बाकी सारे बच्चे थे जो जैसे जो मेरे से हाइट पे छोटे हैं, दैट्स हाउ इंडियन सर्वाइव। हाइट छोटी हो गई, न्यूट्रिशन कम चाहिए, दे कैन एक्चुअली सर्वाइव। जिसकी हाइट लंबी है, दे गेट टू नो देयर एक्चुअल बीच में जो वीक वीक जॉइंट्स और वीक पॉइंट्स होते हैं उनको ही पता चलते हैं। लाइक देयर दिस गाय हु इज 6'5", जो भाग हम्म। रहा था, उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज्यादा है क्योंकि ही इज अ बिगर बल्कियर ड्यूड नाउ, हाँ, फ्रेम बड़ा हो कंपेयर टू अ जाता है। पर्सन हु इज लाइक 5'5", हम्म। जो सेम गेम खेल रहा है, सेम स्पोर्ट खेल रहा है। उसका काम चल सकता है कि दिन में सिर्फ 100 ग्राम्स ऑफ एनिमल प्रोटीन से, हम्म। लेकिन द बल्कियर ड्यूड, ही नीड्स, मतलब उसको चाहिए एटलीस्ट 150, 170, 180, 200। हाँ, एंड क्योंकि वो उसको, तुम्हारा बॉडी एंड वेट के इट्स उस नॉट पे होता अबाउट है ना कि प्रोटीन, इट्स नॉट अबाउट प्रोटीन, इट्स अबाउट फिर। न्यूट्रिएंट्स। अच्छा। तो वो 5'5" वाले को न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, बट वो उसको क्योंकि वो छोटा है उसको कम मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हम्म। है उसको इतनी ज़्यादा। टॉरिन, एंसरीन, जो भी सारे कोएंजाइम 10, ये सब Q10 है, वो सब मिल रहे हैं उसको। हम्म। बट द अदर गाय, ही नीड्स इट मच मोर। और तभी हम देखते हैं कि टॉलर एथलीट्स इन इंडिया मच मोर ससेप्टेबल टू इंजरीज, हाँ। मच मच मोर ससेप्टेबल टू इंजरीज। ईशांत शर्मा कितने टाइम से इंजर्ड था, हम्म। बैडमिंटन में काफी लोग हैं, बट मतलब मोस्टली जो लोग मतलब फिर बाद में सर्वाइव कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, दे हैव बीन एसेंशियली ऑन एनिमल फूड्स प्रॉपर, कि हर डाइट में नॉनवेज आएगा ही आएगा। तब जाके दे स्टार्टेड लाइक गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ देयर डाइट्स। बट इसमें ना, और ये चीज मैं एक्चुअली खुद पर्सनली फेस करता हूँ। आई डोंट नो अबाउट यू, लाइक यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ व्हाइल नाउ तो, लेकिन क्योंकि जो है सोसाइटी का हल्का सा होता है कि जो है ना फ्रॉम ए रिलीजियस स्टैंड पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल जैसे टुडे जो है ना शिवरात्रि है, मेरे को आज सुबह सुबह सबसे पहले मेरी मदर ने कॉल किया और वो कह रही है कि ना बेटा आज ना, आज अंडे या जो है ना कुछ चिकन विकन मत खाइयो, बाकी किसी और दिन खा लियो, लाइक यू, देन तुम इस साइकिल में फंस जाते हो कि हम्म। तुम करो तो करो क्या। और सोसाइटी इंडिया में जो है ये चीज सबसे ज्यादा मानी जाती है। हाउ डू यू फेस दैट थिंग, लाइक उसमें तुम कितना आइडियल बनो? मेरे को कोई ज्यादा प्रेशर तो है नहीं पर्सनली, हम्म। कि मेरे घर से कोई ज्यादा प्रेशर नहीं है कि हाइपर रिलीजियस होने का। ओके। मतलब और बहुत पहले से ही हमने न्यूट्रिशन और रिलीजन को साइड में कर दिया था, क्योंकि जब तुम किसी स्पोर्ट में होते हो ना, हम्म। तो इट बिकम्स मच मोर डिफिकल्ट टू एक्चुअली बी अ रिलीजियस फैनेटिक। हार्डकोर अपने रिलीजन को फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट फॉर योर स्पोर्ट। राइट। तो तो मतलब शुरू से ऐसे रहा था घर पे कि नहीं, इतना एटमोसफेयर था नहीं। लेकिन आई आई सर्टेनली फील कि एनिमल बेस्ड डाइट पे होने के बाद ट्यूसडेज को मैं मीट सोर्स नहीं कर पाता था। ओके। तो मैं क्या करता था, मैं ट्यूसडे को, मेरा एक दिन का फास्ट होना होता था पूरे वीक हम्म। पे, तो मैं हम्म। ट्यूसडे को रख लेता था फास्ट। वेल एंड गुड। आपको आप मतलब समहाउ आई एम गिविंग बैक टू दिस सोसाइटी, कलेक्टिव सेंस में, कि आई एम रिस्पेक्टिंग देयर कलेक्टिव कॉन्शियंस, कि उनको रिलीजन की वैल्यू देनी है, उनको रिलीजियसली दे नीड टू फील गुड अबाउट दिस। बट कंसिडरिंग कि um, ये तो अलग बात है कि महाशिवरात्रि पे मत खाओ या ऐसे मत करो, दिस इज लाइक हम्म। अ सैक्रिफाइस टू द गॉड। दिस इज नॉट कि मैं प्योरिटी कर रहा हूँ, आज मैं प्योर होऊंगा, आज मैं मीट नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं है वो। दिस इज सैक्रिफाइस दैट वी हैव गिवन टू द गॉड, कि मैं आपके लिए आज भूखा हूँ। हम्म। तो इसी पॉइंट को अगर हम फर्दर कंटिन्यू करें तो बेटर ही रहता है, क्योंकि देर आर नो क्लियर इंस्ट्रक्शंस कहीं पे भी कि यू कांट ईट मीट यू हैव इन टू फिगर हिंदू आउट योर रिलीजन। ओन वे। हाँ, यू हैव टू फिगर इट आउट ऑन योर सेल्फ, और प्लस यू हैव टू सी द एवोल्यूशन ऑफ हिंदू रिलीजन।
हिंदू रिलीजन पहले was people who used to eat meat, a lot of them. बट उसके ये बाद ना, जब ये वाला जो है कैप्चर हुआ नहीं यार, ये वाले जो पार्ट है ना कि लोग खाते थे, लाइक इट हैज बीन कंप्लीटली वैनिश्ड। आई डोंट थिंक सो। आई मुझे लगता है कि जो वैदिक सारे टेक्स्ट है हम्म। उसमें क्लियर टर्म्स है। गोविष्ठी होता था, गोविष्ठी यूज्ड टू मीन टू सर्च फॉर काउस, लाइक वॉर फॉर काउस। जो गोवर्धन, ये सारे बट जो योर टर्म्स एवरेज है। हिंदू डज नॉट हैव दिस डेटा, और वो उसको हटा के जो है ना साइड में रख के बोलता है कि नहीं, हम लोग हिंदूज हैं, हम प्रॉपर ब्राह्मण्स हैं, एंड वी विल नॉट ईट मीट एट ऑल। लाइक दे डू नॉट नो अबाउट दिस डेटा, और वो उसको इस तरह से बताएंगे कि जो है ना, नहीं ये तो जो तुम बोल रहे हो वो तो है ही गलत। यू आर ऑलरेडी आई ऑन ए आई मॉरली डोंट वांट रॉन्ग टू कमेंट स्टैंड। अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ मीट हाँ, ईटिंग। हाँ, उसमें मैं एग्री दिस रहूंगा। इज द पॉलिटिक्स ऑफ मीट ईटिंग कि कई लोग जान के भी प्रोपेगेट कर रहे हैं कि नहीं, ऐसे ऐसे मीट ईटिंग हमारे उसमें है ही नहीं कभी से। लेकिन हमारे पे हमको क्लियरली पता है कि जब बुद्धिज्म और जैनिज्म हमारे सब कॉन्टिनेंट में आए, हम्म। उस पॉइंट पे हमारी हिंदू रिलीजन को बहुत बड़ा खतरा था। वी वर लाइक लूजिंग आउट, क्योंकि बुद्धिज्म जैनिज्म बहुत फेमस हो गए थे एकदम से। एवरी किंग वाज डूइंग दैट एट द टाइम, इतने सारे लोग थे। और बाहर से लोग आ रहे हैं, इट 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 हैज स्प्रेड इमेंसली एकदम से। प्लस उसकी इगैलिटेरियन वैल्यूज थी जो हाँ, वो अपील कर रही थी लोगों को। तो हिंदू रिलीजन ने अपने आप को चेंज किया। सम ऑफ द थिंग्स इट टुक कि हम भी इगैलिटेरियन हो जाते हैं, हम भी शुद्धि कार्यक्रम, या फिर हम मतलब शुद्धि तो बात है, लेकिन शुद्धि टाइप चीज है कि हम भी कास्ट को थोड़ी कम वैल्यू देंगे। हम प्योरिस्ट भी, बन जाते हैं। हाँ, तो हम उधर से ही आए थे सारा कॉन्सेप्ट कि अब हम भी मीट ईटिंग को एक नॉन मीट ईटर्स को वर्च्यू बनाएंगे कि हाँ, बीइंग वेजिटेरियन इज द वर्च्यू। वर्च्यू। तो वो वहीं से शुरू हुआ, वहां से वो उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा दिया। और वो हम देखते हैं उसका राइज, असली राइज कहाँ पे होता है। उसका असली राइज होता है जब हम जो सारा पार्टीशन की डिबेट चल रही है और दोनों तरफ से हार्डकोर कम्युनलिज्म शुरू हो गया है, एक्सट्रीम हम्म। कम्युनलिज्म। हम्म। तो उस टाइम पे एक आइडिया ऐसा चाहिए था कि जो बिल्कुल सेपरेट कर दे दोनों रिलीजन्स को, हिंदूज और मुस्लिम्स को। हम्म। तो एट दैट टाइम द आइडिया, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, वाज कि हमें गौ माता की रक्षा करनी है। तो इंटरेस्टिंग। वो काफी सीरियस थ्रेट हो गया था। मतलब अगर हम सिर्फ ये कहें कि गौ माता की रक्षा करनी है, धीरे धीरे वो ट्रांसलेट हुआ कि हमें बकरी वकरी इन सब की रक्षा करनी है, सब भी करना है। सो मीट ईटिंग एज अ बेसिकली जो होल है वाज सपोज्ड टू बी। इवॉल्व करता गया हिंदुइज्म इन द साइड ऑफ बिकमिंग मोर एंड मोर प्योरिस्ट, ताकि वो उन जैनिज्म और बुद्धिज्म के साथ थोड़ा बहुत जो है compete कर पाए इन टर्म्स ऑफ बीइंग हाँ, एबल टू मतलब लाइक कंप्लीट भी प्रोपेगेट। नहीं, उसने तो बिल्कुल जैनिज्म बुद्धिज्म खत्म कर दिया। बुद्धिज्म को तो खत्म ही कर दिया था सब कॉन्टिनेंट से उसके बाद उसने। हाँ, आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग ऑल दीज वैल्यूज, बुद्धिज्म डाइड कंप्लीटली। हाँ। जैनिज्म बचा था सिर्फ। और दिस वाज बिकॉज इंटरेस्टिंग। ऑफ द अडेप्टेशन दैट वी कुड डू। अडेप्टेशन ही थी ये। हमने कहा कि हम, ठीक है, हम संस्कृत में नहीं करेंगे, हम भी लोकल लैंग्वेजेस में करेंगे। हम्म। क्योंकि अब बुद्धिज्म जैनिज्म इतनी ऊपर उठ के आ गई कि उनने संस्कृत पे प्रीच करना शुरू कर दिया था। जबकि उनका कॉन्सेप्ट था ये कि वो लोकल लैंग्वेजेस में करेंगे। तो एग्जैक्टली। वहां से हिंदुइज्म फिर से इवॉल्व होता है, अडेप्ट करता है और मूव ऑन करता है। और अभी भी देखेंगे हम, अभी भी अडेप्टेशन ही चल रही है उसकी। अडेप्टेशन जैसे देखोगे कि इससे पहले था कि हम धर्मा को बहुत बिलीव करते हैं, धर्म को। हम्म। हमारा धर्म हमें गलत होना नहीं सिखाएगा, ऐसी चीजें हमें बता रखी है। राइट। इट मेड अस मोर टॉलरेबल। बट अभी द नीड ऑफ द सेंचुरी वाज कि हम टॉलरेंस ना रखें इतनी, वी बी ऑन द अटैकिंग फ्रंट फुट। तो अब देखोगे चेंजेस आ गए हैं थोड़े थोड़े। हमने खुद हम्म। से ही करे हो चेंजेस। जैसे अब देखोगे वो हनुमान जी की जो एक पोर्ट्रेट बनती है नई, उसमें हनुमान जी का फेस ही ऐसा है। इट्स शोन टू बी एरोगेंट, courageous, it's shown to be brave, it's shown to be willing to स्टोइक, attack. थोड़ा स्टोइक फेस है उसका वो। Stoic नहीं है वो, it's aggressive. एग्रे It's like a front foot, I'm gonna attack you. ठीक है, लाइक। जैसे I'll show you the one I'm talking about, maybe you will get the hint then. अच्छा। uh, you must have seen that, वो गाड़ियों के पीछे ऐसे लगा होता है वो गाड़ियों वाला ही, शेर। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, लाइक दैट इज हाँ द वन हाँ आई हाँ इमेजिन हाँ ओनली, हाँ वही हाँ वही वाला ही, हाँ। लाइक ही इज इन ए वॉरियर वाला मोड, बट मेरे को वो थोड़ा हाँ स्टोइक हाँ। लगता है। अच्छा अच्छा, या मतलब डिफरेंट वही वही, इंटरप्रिटेशन फॉर एवरीवन। बट लेकिन उससे पहले जो आप हनुमान देखोगे, जो जो वो मूवी में था और ये सब वो था, चीयरफुल वाला होता था। आज्ञाकारी,
हाँ राम जी जो भी मुझसे बोलेंगे मैं वो करूंगा, और मैं धर्म को निभाने आया हूँ, मैं हाँ गलत नहीं कर सकता, और मैं पहला पहला स्टेप, मैं पहला कदम गलत का नहीं लूंगा, ऐसे वाला था वो। तो वो राइट अडेप्टेशन ही है। और आई थिंक एक अडेप्टेशन हमें अब ये भी चाहिए कि मेटाबॉलिक हेल्थ इतने लोगों की खराब हो रही है, 53-56% इंडियंस आर डायबिटिक, हाँ 53% ऑफ द इंडियन वुमेन आर अनेमिक। मतलब वी आर गोइंग टुवर्ड्स फूड फोर्टिफिकेशन, कि अपने राइस में हम फॉलिक एसिड डाल देते ताकि ये अनेमिक ना रहे, और ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। बट इंस्टेड व्हाट वी नीड इज एनिमल बेस्ड न्यूट्रिशन। थोड़ा सा लिवर, एक चंक ऑफ लिवर ही दे दे हम उन स्कूल बच्चों को या फिर अनेमिक वुमेन को, इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ देम। इट विल लिटरली हेल्प अ लॉट ऑफ देम। अगर एक चंक ऑफ लिवर में देखिए, आयरन इज अबाउट 39%, 100 ग्राम में 39% ऑफ द रिक्वायर्ड डेली अलाउंस। राइट तो एक दो दो मतलब 200 ग्राम लिवर, एंड यू आर क्योरिंग अनीमिया आउट ऑफ विमेन। जहाँ पे हम एक ग्रैंड स्केल पे फूड फोर्टिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, डजंट मेक सेंस टू मी। तो वो अडेप्टेशन हमें चाहिए अब, अगेन एज अ रिलीजन, कि हम अब रिलीजन ऑफ मीट ईटर्स बन जाए वापस से, दोबारा गो बैक टू आवर रूट्स। क्योंकि हेल्थ इज इंपॉर्टेंट फॉर सिविलाइजेशन। अगर सिविलाइजेशन की हेल्थ ही नहीं है, वी एज वेल एज डेड। वो बेसिकली हमारा एवोल्यूशन फिर जो है दूसरी तरफ चला जाएगा, लाइक नॉट वर्किंग फॉर आवर बेनिफिट एसेंशियली। हाँ, वी आर आई सीइंग दिस गेट दैट। आफ्टर द एज ऑफ एग्रीकल्चर, कि हम्म एज ऑफ एग्रीकल्चर के बाद लाइक द ह्यूमन ब्रेन वाज, उसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी, वो बढ़ती जा रही थी। फिर हम्म एज ऑफ एग्रीकल्चर आता है, एंड इट डिप्स हल्की सी, ओके which could only correlate with animal based nutrition हटी और agriculture में vegetarian nutrition आ गई। that could be the only possible reason behind that। तो मतलब again, हम we are like at a severe disadvantage अगर हम animal nutrition नहीं यूज कर रहे, because evolution takes time। हम हम्म morality में उसको डिफेंड नहीं कर सकते, कुछ भी कर ले हम, कितने हद तक चले जाए, हम अपनी बॉडी को मोरालिटी से ऐसे नहीं कह सकते कि हम आज से मोरल हो गए तो हमारी बॉडी भी एक्सेप्ट कर लेगी हम आज से मोरल है और हम सिर्फ वेजिटेरियन हैं। हाँ, योर मोरालिटी डज नॉट डिपेंड ऑन योर बायोलॉजी। ट्रू। बिल्कुल 100%। तो इसलिए मतलब इसलिए आई आई से आई मीन ऑल ऑफ दीज पीपल जो वीगन से कन्वर्ट होते हैं, हम्म दे गो बैक टू लाइक सम सॉर्ट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन, उस पे वो वापस आते हैं। all of these people are like, at some point I can't do this toll on my own health। that's what their common argument is, कि अब मेरी हेल्थ इतनी खत्म हो चुकी है कि I can't take this anymore on myself। and that's where you realize that, I mean, as good as a ethical argument anything is, हम्म कितनी भी ethical हो argument, तुम्हें लगता हो कि मैं इसकी एनिमल की एनर्जी नहीं लेना चाहता, इसको मार के, या जो भी आर्ग्यूमेंट है तुम्हारी, राइट एट द एंड ऑफ द डे जो तुम खा रहे हो, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। वो ज्यादा क्वांटिटी में है, वो उसमें टैंजिबल चीजें हैं जो तुम्हें मिल रही हैं, राइट rather than something intangible which is like the spirit of the animal। you're not eating the spirit of the animal। राइट अच्छा ठीक है, लेट्स शिफ्ट गियर्स। योर प्रोफाइल सेज डिस्ट्रॉयर ऑफ फिटनेस, फिटनेस एंथुजियास्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। इसके पीछे का क्या वो है, थॉट है? यार it just started off as something कि I was competing with a lot of people शुरू में ओके ट्विटर पे। हम्म और ऑफन ऑफन ऐसा होता था कि कोई रैंडम कोई जिम ट्रेनर कोच ऐसा टाइप, जिसको who has never felt how it feels to be on the carnivore diet, या तो हम्म वो कर ले, या तो वो कर हम्म ले और वो कहे कि मैंने कार्निवोर भी ट्राई कर लिया है, जिम के पर्पज से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तुम्हें कार्ब्स इतने चाहिए चाहिए। हम्म आई एक्सेप्ट दैट, आई विल लाइक दैट्स अ डिबेट अगेन। ठीक है बट देयर विल बी गाइस जो विल बी लाइक हु हैव अ सेट प्रिंसिपल, कि भाई मैं तो बस आज प्रोटीन की बात ही करूंगा, और मैं एक रिडक्शनिस्ट अप्रोच लेके फिर से चले जाता हूँ इस चीज में। तो मेरे को दिखा कि मतलब इट वाज एन इजी मार्केट फॉर देम, कि रोज किसी को फालतू की चार बनाई हुई चीजें पिलाओ अपने ऑडियंस को, कि अपनी 100 ग्राम प्रोटीन मेजर करो, चाहे वो टोफू से आए चाहे किसी चीज से आए। राइट अपने अपना मतलब ये एक्सरसाइज तुम्हें 10,000 स्टेप्स करने ही करने हैं। मैक्रो पे फोकस करो और कैलोरीज इन कैलोरीज आउट देखो। मतलब वो दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन बिल्ड एनीथिंग आउट ऑफ इट।
Right. वो कई बार करते हैं कि सिर्फ डेडलिफ्ट मारो, सिर्फ कॉम्पोजिट वो एक्सरसाइज करो। I mean, could be anything, could almost like it's almost anything, कुछ भी Right. होता है, बिना सर पैर की चीजें होती है आधे से ज्यादा। बिल्कुल। तो दैट्स वेयर आई थॉट कि यार द एजेंसी, किसी को एजेंसी है ना कि अपने खाने की, कि वो उसको वापस मिलनी चाहिए उसके पास कहीं ना कहीं। ओके। और मोस्टली लोगों को नहीं मिलती। मोस्टली लोगों को ऐसा लगता है कि जो ट्रेनर ने मुझे बोला है ना 4 चपाती इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, बल्कि मन अंदर से तुम्हें कर रहा है कि मैं इतना घी खा लूँ, मैं ये खा लूँ, उसका रेगुलर तुम्हें इंस्टिंक्ट आ रही है अंदर से, तुम वो नहीं करते हो। तो this was the point behind it. So when I started out, I was regularly calling them out, and people started following me from there. ठीक जो है। उनको फॉलो करते, मैं उनको बताया कि सुनो, तुम्हें कोई प्रोटीन मेजर करने की जरूरत नहीं है, तुम रेड बीट लो और पेट भर के खाओ, कुछ मत मेजर करो। एंड दे स्टार्टेड डूइंग इट, एंड दे वर लाइक कि दिस फील्स बेटर, कुछ सोचना नहीं पड़ रहा मुझे। हम्म। और दीज आर पीपल हु आर नॉर्मली वर्किंग। ये कोई वो नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं, या फिर ये दे आर नॉट लाइक प्रोफेशनल एथलीट्स। तो आई वाज लाइक कि दिस नीड्स टू बी डन, एजेंसी वापस आनी चाहिए, दीज गाइज नीड टू बी डिस्ट्रॉयड। और हाँ, आगे जाके ऐसे ही होने वाला है। आई सी द मार्केट फॉर हम्म। ट्रेनर्स और न्यूट्रिशनिस्ट डाइंग, डिक्लाइनिंग, खत्म होते हुए। जब अभी के टाइम में हमने इतनी सारी स्टडीज देख ली, और अभी के टाइम में रुजुता दिवेकर जाके खुलेआम बोल सकती है कि पोहा खाओ, पोहा इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैव फॉर आयरन डेफिशिएंसी। इस टाइम पे आई मीन I just can't say anything about it यार। I mean, वो पोहा राइस और ये सब आपको बोले तो लेकिन व्हाट इज योर this is पॉइंट like a ऑफ व्यू celebrity ऑन nutritionist। है? This is like a celebrity nutritionist। हाँ, ये तो सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट है, उनका कई बार कुछ समझ में नहीं आता। बट व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू कि जो लोग एक जो है ना प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग ऑन कार्निवोर, दे आर हैविंग देयर मीट प्रोडक्ट्स, दे आर आल्सो हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ कार्ब्स, एंड दे आर आल्सो हैविंग देयर फैट्स। हाँ, वो that's एक good अपनी मतलब। हम्म। हाँ, इट्स अ गुड डाइट, मतलब LCHF होता है, लो कार्ब हाई फैट। हम्म। उसके भी कोचेस हैं। एंड पीपल, मतलब पीपल अवॉइड अ लॉट ऑफ मेटाबॉलिक डिजीजेस ऑन दैट एज वेल। तो राइट। इट्स अ गुड थिंग टू डू, मतलब उस स्पेक्ट्रम पे तुम आ जाओ। उसका हम्म। एक एक्सट्रीम है कार्निवोर, हम्म। जिसमें यू विल बी गेटिंग नो एक्स, नो बॉडी पेन्स, कोई ऑटोइम्यून्स नहीं, ऑलवेज फीलिंग वेल एट द टॉप ऑफ योर फिजिक, कॉन्स्टेंटली फीलिंग द अर्ज टू वर्क आउट, ये सारी चीजें हैं उसमें। राइट। उसका उसके थोड़े से पीछे LCHF है। यू डू नॉट वांट टू डू दैट मच, तुम्हें टाइम नहीं है, तुम प्रोसेस नहीं कर पा रहे, तुम्हें इकोनॉमिकल रेस्ट्रेंट्स हैं, कुछ भी है, तुम हम्म। LCHF पे आ जाओ। तुम हाईली डिपेंडेंट ऑन एनिमल प्रोडक्ट्स रहो, थोड़ा बहुत स्पाइसेस यूज करो, ग्रेवीज यूज कर लो, वेजिटेबल्स यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो उस सेंस ऑफ, मतलब अपने कार्ब्स को 100 ग्राम से कम रख लो बस। लेकिन मतलब उस ऑपोजिट एंड पे आना, इसमें तुम कह रहे हो मैं सिर्फ वेजिटेरियन खाऊंगा और मैं सिर्फ थोड़ा बहुत एनिमल प्रोडक्ट्स यूज कर लूंगा, कुड बी डिजास्टर्स अगेन। मतलब जितना तुम उसको फॉलो करोगे उतने ही तुम इसको बेनिफिट्स मिलेंगे। हम्म। एंड समटाइम्स मतलब इट बिकेम्स मोनोटनस। कार्निवोर हो जाता है, मतलब मोनोटनस है, तो देयर आर मोनोटोनस गुड तो हो, थिंग्स। हाँ। तुम यू कैन ऐड चीज, मतलब आई लव चीज, आई वुड डू लाइक मटन चीजी बर्गर्स बना लेता हूँ मैं, एंड दैट इज गुड फॉर मी। बट मैंने देखा है मेरी 99% ऑफ दी मोनोटनस जो बोरिंग होती है, क्रेविंग्स भी होती हैं, वो तब आती है जब मैं भूखा होता हूँ, व्हेन आई एम हंग्री। राइट। मेरे मील के बाद कभी नहीं आती वो। तो मैं, अगर मेरे को क्रेविंग्स है और कुछ भी है एंड आई वांट टू बी डिसिप्लिन्ड, आई क्विकली गो टू द किचन, मैं अपना पैन रखता हूँ, मैं अपना मीट डालता हूँ उसमें, मैं उसको जल्दी से खाता हूँ। दैट्स व्हाट यू नीड टू लाइक गेट ऑफ दीज क्रेविंग्स। 2 मील्स अ डे, एनिमल बेस्ड, फुल सेटिएशन, प्रॉपर 600-700 ग्राम। एंड बस इंटरेस्टिंग। जस्ट आई होप कि इसकी इकोनॉमिक सेट हो जाए, क्योंकि as more and more people get into it, हम्म। more demand will mean more supply, हम्म। and that's where we'll actually be like having a major shift। एग्जैक्टली। तो वो तो जब है। मटन की कॉस्ट यहाँ पे 200 रुपए केजी हो जाएगी, हाँ। that's a win। It's a win then only। ये इवन राइट नाउ लिशियस एंड अदर जो ऑनलाइन रिटेल हैं, रिटेलर्स, सी रिटेलर्स, दे आर आल्सो लाइक चार्जिंग अ बॉम्ब। हाँ हाँ, मतलब दे उनका मटन इज कॉस्टिंग समवेयर अराउंड 1100 a kg। अगर हम देखें 300 के पैक्स में आता है। बट अगेन मतलब दे उनको भी पीछे से कहीं से 660 या 700 सोर्स हो रहा होगा, एंड दे हैव टू मेक देयर प्रॉफिट्स एज वेल। तो अंडरस्टैंडेबल क्यों कर रहे हैं सारे ऐसा, राइट? हम्म। क्योंकि मतलब एट द एंड ऑफ डे बिजनेस है, इट्स बिजनेस। एंड दिस इज आल्सो लाइक काइंड ऑफ अ लो मार्जिन बिजनेस आल्सो ना, क्योंकि यू हैव टू रेज एन एनिमल
and then you have to like sell its body part. तुम उसमें जो है modification नहीं कर सकते. तुम when you are in the processing industries, like जो चीज तुम प्रोसेस कर रहे हो उसमें बहुत सारे डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हो, उसकी कॉस्ट मैनिपुलेशन की जा सकती है. यू कैन मेक श्योर देयर आर मार्जिन्स. यहाँ पे बहुत कम मार्जिन्स है एज एन इंडस्ट्री Yeah, आल्सो. yeah. And there's also one more thing कि most of these plant-based things don't have a significant cost to them. मतलब plant-based powders हैं, they're mostly industrial rejects. जो एग्जैक्टली. industrial लाइक तो पूरा बियॉन्ड मीट उसी पे बना हुआ है, हाँ, लाइक फुल ऑफ Beyond सीड Meat ऑयल एंड is व्हाट नॉट. सीड ऑयल्स और इवन द प्रोटीन पाउडर जो आ रहा है वो चाइना दे रहा है मोस्टली, जो यूएस को सपोर्ट कर रहे हैं. राइट. और व्हाट इज हैपनिंग इज यूएस is exporting meat to China, and China is exporting this industrial waste to US, and people in US are एग्जैक्टली. eating it. So it's a society gone backwards. USA, you और plus मतलब and not the whole society, मतलब still वो जो Beyond Meat use करने वाले हैं बहुत कम है. I mean, no अरे one likes the इवन taste of it. Beyond Meat before its IPO was actually backed by Tyson Foods, which is one of the biggest like meat producers. पूरी उनकी अच्छा. butcher houses and whatnot. हाँ, they had a 5 to 6% stake in Beyond Meat. What were they doing? वो What were they वो thinking? मैनिपुलेट कर रहे हैं. वो बेसिकली दिस इज प्योर कैपिटलिज्म. लाइक Yeah, वो तो वीगनिज्म तो सब मुझे में वही हो रहा है दिख रहा है. यार. दिस वीगन डॉक्यूमेंट्री थी जो गेम उसमें मैं चेंजर्स. लास्ट टाइम बता रहा, गेम चेंजर्स में ही बता रहा था मैं लास्ट टाइम. आई हैड दिस फाइट विद उसके डायरेक्टर इंस्टाग्राम पे, लाइटनिंग वेल्स के साथ. सो दिस गाय आई वाज लाइक ही हु प्रोड्यूस दिस Avatar वाला डायरेक्टर, जेम्स जेम्स कैमरून. कैमरॉन. जेम्स कैमरून produced this documentary, or I राइट. was pointing out that I was like, your director has a stake in this in this plant-based company. हाँ. And he was like, nahi, it was not the director, check your facts. So what, bro? It was not your director, it was your producer. Then what? But he still invested 100 million in that plant-based company. ऑब्वियसली उसे इन्फ्लुएंस करना है. Huh, it's shady. It's a shady deal. What do you have to say about that? Like, that guy won't talk about that at all. He won't tell me about ki why all of these athletes जो उस movie में है, they're either frauds, they're either big frauds, or they have left the game, they have retired, or are declining in their mental health like crazy. क्यों हो रहा है ऐसा? If अरे they're like, इवन if आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जिसने जो है बोला कि मैंने अपने करियर में पूरा मीट खाया है, और उसमें भी जाके बोलता है कि नहीं मैं अभी भी ना अपने 20% डाइट में मीट रखता हूँ, लेकिन मैं कम कर रहा हूँ, लेकिन वो खा आराम से पूरा बीफ एंड व्हाट हाँ, नॉट ट्राई. even जो नेट डियाज का लिया है, नेट डियाज इज अ pescatarian. He eats fish regularly. फिश. So I mean, what kind of a plant-based diet is that? And that is in the documentary. No one is questioning it. That's the worst part about it. उसको कोड करते हैं लोग, उसको एक्चुअली में कोड करते हैं. लाइक पीपल नीड टू नो कि जो है ना वो कितनी बार डिबंक हो चुकी है. कोई वो नहीं देख रहा. जो हाँ, नेटफ्लिक्स ने true. मार्केटिंग कर दी है, जो दिख रहा है वही बिक रहा है वाला, उसमें वो गेम है. दैट इज Oh, लाइक एब्सर्ड. it is. तो It is absolutely. हाँ, ठीक है. तो अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल जो ये कॉन्वर्सेशन सुन रहा है एंड ही वांट्स टू स्टार्ट विद कार्निवोर, और जो है ना उसका सबसे बड़ा फियर तो ये होगा कि जो है ना कार्ब्स एलिमिनेट होंगे तो मेरी एनर्जी और लिथार्जी एकदम से ना बढ़ जाएगी. सो हाउ डू दे गो अबाउट इट? कहां से वो शुरू करें एंड हाउ फास्ट द स्विच कैन हैपन? वो वहां से उस तरह से ट्राई करें. कैन यू गिव सम पॉइंट्स ऑन दैट? If you, मैं जो recommend करता हूँ लोगों को, I recommend कि you slowly reduce your carbs and you change the form of your carbs. ओके. तुम fruits ज़्यादा यूज करने शुरू कर दो और उसको धीरे धीरे टेपर कर end में, like ओके. in a period of week तुम उसे टेपर करके और धीरे धीरे निकाल दो बाहर. राइट. But mostly लोगों को they can't like get to proper 2 meals in a day. तो what they try to do is कि कीमा के साथ रोटी खा ली और ऐसे कर लिया. No, ओके. what I suggest is कि initially 1 or 2 months to see the full effects, try as hyper carnivore as you can. जितना तुम बिल्कुल प्योर फॉर्म में कर सकते हो उतना प्योर फॉर्म में करो उसे. ओके. फर्स्ट at least 2 months. फर्स्ट 2 months. First 2 months मतलब have just one. Mostly people will go for 2 meals क्योंकि I don't think कोई इतना होगा कि he'll be like as tall as me, like I'm super tall, 6'3", like हाँ, freakishly इट्स too अबव tall. द एवरेज. हाँ, तो mostly people will be like 5'8", 5'9", ऐसे, and they would do well with almost like 600-700 grams of meat in a day. और अगर उसमें भी वो they try to supplement it with eggs, तो तुम्हें 400-300 ग्राम ही मीट खाना पड़ रहा है, बाकी तुम एग से कर लेते हो. हम्म. For most people 1 meal is like good enough.
एंड इसके साथ साथ आई रिकमेंड कि आई मीन इफ यू वांट टू स्नैक, हम्म कीप एट हैंडी सम काइंड ऑफ डेयरी, जैसे बटर रख लिया तुमने साथ में, ये सब रख लिया, तो दैट्स अ गुड स्नैक. इट एक्चुअली विल रेगुलेट योर हार्मोन्स मच मोर. तो इनिशियली हम्म तुम्हें चाहिए कि और हार्मोन रेगुलेशन होए, क्योंकि यू डूइंग अ बिग स्विच. तुम कंप्लीट कार्ब्स से टॉक्सिन्स हटा रहे हो, तुमने ये सारी प्रोसेस चीजें हटा दी है, तो वहां से बिग शिफ्ट आएगा. तो फर्स्ट वीक टेपर डाउन करो कार्ब्स को. यूज अ लॉट ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स, एनिमल बटर एज अ सप्लीमेंट बीच बीच में यूज करने के लिए, एज अ स्नैक अगर तुम्हें हम्म भूख लग रही है. ट्राई टू, एज इट इज बटर, मतलब बटर तुम खा जाओ? हाँ, हैव इट, have like a ओके. chunk of it, have like a chunk of it, and that would be okay for you. और ये नॉर्मल बटर मतलब अमूल बटर एंड जो भी तुम्हें अमूल मिलता बटर है? भी you can use it, but हाँ. मतलब सबसे अच्छा घर का बटर है, जो तुम्हें अगर कोई तुम्हारा खुद का मिल्क मैन है या फिर दूधिया है, उससे लो, वो बढ़िया रहता है. ठीक है. क्योंकि ठीक उसमें है. थोड़ा सा क्वालिटी कंट्रोल है. और जैसे हमने देखा है कि जैसे अमूल बटर और ये सब है, इनके हम्म मिल्क एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में जब मशीन से होता है, तो उस पे ब्रेस्ट पे काफी चोट आ जाती है. एंड मतलब इस इनका सर्टेन क्राइटेरिया है. उस ठीक है. क्राइटेरिया तक इन्फेक्शियस जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जा सकते. तो आई डजंट मेक्स मी फील बैड अबाउट द होल थिंग. तो आई जस्ट डू, आई स्किप इट ऑल टुगेदर. ट्राई टू ठीक है. यूज इट वेरी लेस. तो यू कैन यूज घी या फिर ऐसे कुछ, लाइक फीलिंग हंग्री, एक चम्मच घी लिए, दैट मतलब स्नैक करने के लिए. बट अदरवाइज लाइक a good meal would be like have some eggs, two हम्म three eggs, or हम्म have a lot of red meat. जो वो भी मतलब आई प्रेफर कि शुरू में ना जो मटन कीमा है, हम्म गो फॉर दी कनेक्टिव टिश्यू मच मोर. जो ये मिस्टेक है जो मैंने अभी रियलाइज करी है, पहले नहीं करी थी. कनेक्टिव टिश्यूज एज इन एग्जांपल? कनेक्टिव टिश्यूज हो गए, जैसे जॉइंट्स और ये सब होते हैं ना, विच इज राइट. मच क्लोजर टू द बोन. तो हाँ. वहाँ पे उसके बेसिक कॉलेजन होता है जो आपके बीच में कनेक्ट कनेक्ट करता है टिश्यूज को. या. हाँ. तो कॉलेजन यू विल गेट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कॉलेजन इसमें. और उसमें भी एक हम्म स्टडी है जिसमें एक माइस को प्रॉपर मीट दिया गया, एक को कॉलेजन दिया गया. तो हम्म वन विच वाज गिवन लॉट ऑफ मीट एंड फैट, हम्म ही ग्रू स्ट्रॉन्गर, बट उसकी हम्म लाइफ स्पैन कम हो गया. द वन ओके. ऑन द वन इन कॉलेजन, उसका लाइफ स्पैन बढ़ गया. वो ही वाज नॉट मच स्ट्रॉन्ग, ही डिडंट लुक लाइक मच बल्कियर, बट ही वाज स्ट्रॉन्गर. गॉट इट. तो इंटरेस्टिंग. collagen helps a lot, और ये I learned it the hard way. तो didn't have it for a while, and I just मतलब constantly ऐसा लग रहा था कि something's wrong, थोड़ा थोड़ा मतलब there was a ओके. slight blurt of acne बीच में. और जब collagen मैंने यूज किया तो वो सारा सरप्राइज हो क्लियर गया. हो गया, सारा सब कुछ क्लियर हो गया. तो ये एक चीज़ है उसमें. और फैट का आई मीन मोस्ट पीपल कांट लाइक गेट द राइट गेज ऑफ इट कि कितना फैट चाहिए. तो इनिशियली अगर फैट हल्का सा कम है और तुम जब भी तुम्हें भूख लगी है तुम उससे बटर से ऐड कर रहे हो, तो दैट वुड वर्क वेल. और व्हाट अबाउट पनीर एंड मिल्क? लाइक पनीर ट्राई को टू क्या हैव उसमें इट. कार्ब्स होते हैं क्योंकि पनीर में एसेंशियली? हाँ, वो ट्रेस कार्ब्स ही है, मतलब आई हाँ. मीन 3-4 ग्राम्स इन 100 ग्राम. राइट. बट अगेन वो हाई फैट है, हाई प्रोटीन है, बहुत सारे हम्म न्यूट्रिएंट्स भी है इसके अंदर. ठीक है. बट इट्स नॉट एज क्लोज टू रेड मीट. रेड मीट. एंड रेड मीट ऑर्गन्स इतना क्लोज नहीं है. बट अगेन मतलब मैं इकोनॉमिक्स देख रहा हूँ अब, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल विल बी हाँ डिपेंडेंट हाँ, ऑन द कीपिंग इन इकोनॉमिक्स माइंड नाउ. अबाउट द इकोनॉमिक्स आल्सो. हाँ, तो उस पॉइंट पे हाँ डेफिनेटली पनीर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो तुम. लाइक हैव ओके. अ मील जिसमें तुमने पनीर एंड एग्स है, हम्म एक मील. हम्म बट अगेन थिंक इन टर्म्स ऑफ मील्स, राइट. कि मुझे 2 मील खाने हैं. एक मील में आज पनीर एग्स या फिर रॉ मिल्क और एग्स कर लेता हूँ. प्रिसाइजली. अगला मील में सिर्फ रेड मीट खा लूंगा या फिर एक ऑर्गन यूज कर लूंगा. हम्म तो वो बेटर होगा. रादर देन तुम कहोगे थोड़ा सा पनीर पड़ा है, मैं पनीर भी खा लेता हूँ, ये वो. जस्ट प्लान वन होल मील, डोंट हम्म स्नैक. दैट मतलब दैट विल गिव यू द फुल बेनिफिट्स. तुम्हें वो लेप्टिन रिलीज के बेनिफिट्स भी मिलते हैं कि जब तुम्हें भूख और क्रेविंग्स खत्म हो जाएगी. हाँ, इंटरेस्टिंग भाई. तो इम्पोर्टेंट इज टू ईट टिल फुल सेटिस्फाइटी, मतलब पूरा पेट भर के खाना ही खाना है. एंड फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, आई एम अ हैवी मिल्क ड्रिंकर, मतलब मैं ऑलमोस्ट 1 लीटर मिल्क पी लेता हूँ. बट हम्म इट्स नॉट वो रॉ मिल्क नहीं है. हम्म सो उस 1 लीटर इन अ डे? ऑलमोस्ट 700 ml टू 1 लीटर. इन अ डे? हाँ. अच्छा. हाँ, आई मीन you'll be कैन यू drinking डू तभी. दैट? आई मीन आई यूज्ड टू डू दैट, मतलब
2.5 लीटर पहले कर्ड से पहले मैं 2.5 लीटर रॉ मिल्क ही पी रहा था, ओके, बट इट डिडंट फिट वेल विद मी रॉ ओके। मिल्क। कभी कभी मतलब यार वो दूध या कभी कभी होता है। द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज या समथिंग एल्स? द मिल्क मैन समटाइम्स एडल्टरेट्स, वो चाहता है और उसका मन नहीं करता, कुछ ना कुछ मिला के ले आता है दूध में वो। तो हाँ, वो तो तो हाँ। मेरे साथ ऐसे होता था कि मैं 1 महीना तो बढ़िया चल रहा है, हम्म। फिर उसने दूध में कुछ मिलावट कर दी, तो उसके बाद लाइक आफ्टर दैट वन डे आई फक इट अप, मेरे को एकदम से पेट खराब हो जाता है, फिर ओके। उस प्रोसेस में 1-2 दिन निकल जाते थे, तो आई वाज लाइक बेटर कि इसकी कर्ड ही बना लेता हूँ मैं। आई जस्ट यूज हम्म। लाइक रॉ कर्ड। तो हाँ, यू कैन यूज डेयरी, और मतलब इट्स अ गुड सोर्स, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन। एंड गॉट इट। मतलब चिकन से कहीं ना कहीं मुझे बेटर ही लगता है, चिकन और एग से ये थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें अगेन अगेन लिनोलेइक एसिड कम होगा हम्म। मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि अगेन वो ग्रेन्स तो खा रही है बफलो हम्म। और ये सब, बट वो ग्रास और ये सब वो सारे भूसी और ये सब भी खाती है। राइट, एग्जैक्टली। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि उसमें जो फैट्स होंगे दैट बी मच लो इन लिनोलेइक एसिड, जो ओमेगा 6 है वो भी कम होंगे उसमें, ओमेगा 3 ज्यादा होंगे। लेकिन एक जो चीज ना मेरे को जाननी थी कि लाइक इंडिया में एज अ कंसेप्ट की जो है ना ग्रास फेड जो है ना आपका रेड मीट नहीं मिलता। लाइक व्हाट इज द परसेंटेज? लाइक मोस्ट ऑफ देम की इन सबको ग्रेन्स ही मिले हुए होते हैं, उनको ग्रेन्स खिला के ही आई बड़ा थिंक करते हैं। बफ में तो ग्रेन्स ही होंगे मोस्ट प्रॉब्ली, हम्म। क्योंकि द एनिमल इज मच मोर अडेप्टेड टू इट, वो जल्दी हम्म। बीमार नहीं होता ग्रेन्स खा के। बट लेकिन मटन है ना, गोट हम्म। है, उसको तुम ग्रेन पे रखोगे 1 महीना 2 महीना, हम्म। वो बीमार होना ही होना है। इट्स नॉट अ ओके। वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल। तो मोस्टली उसको लोग जो है उसको पेड़ पत्ते ऐसे यही खिलाते हैं, लीव्स और ये सब, उसकी एवोल्यूशनरी डाइट, और एंड में उसको ग्रेन पे फिनिश कर देते हैं कि मोटा कर दिया। एंड के 15 दिन, हाँ, मोटा कर दिया उसको। उसको ओके। ग्रेन खिला के बाजरा खिला देते हैं, ऐसे कुछ भी खिला देते हैं। हम्म। तो दैट इज मच मोर बेटर देन अ गॉट इट। नॉर्मल ग्रेन रेज्ड एनिमल। तो अगर मतलब जैसे मैं अपने लोकल बुचर से मैंने बात कर रखी है, वो उसने मेरे लिए, मतलब मैं उसके पास जाता हूँ तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं उसको लीव्स पे फिनिश कर दूंगा। ठीक तो है। उसका रेट मुझे कहता है कि ठीक है, आप मुझे 660 की 700 देना, ठीक है, गॉट इट। गॉट नॉट इट। दैट बैड अ डील। गॉट इट। सो यार, लाइक दैट इज ऑल आई हैड। डू यू हैव समथिंग दैट यू वांट टू शेयर इस चीज में? क्योंकि हमने और काफी सारी चीजों को हमने कवर करा, देखा जाए तो। हाँ, लाइक वी वेंट ऑन द रिलीजन एस्पेक्ट आल्सो, वी वेंट कि इंडस्ट्री साइड पे भी हम गए, और हाउ टू एक्चुअली लाइक गो अबाउट व्हेन यू स्टार्ट विद द डाइट, उस पे हाउ यू एक्चुअली गॉट इनटू इट। सो या, योर थॉट्स मैन। आई मीन आई जस्ट लाइक वांट टू इन्फ्लुएंस पीपल अबाउट दिस, और यही था मेरा तो पूरा होल पर्पस। लाइक द स्टार्टिंग ऑफ दिस होल थिंग वाज आल्सो जस्ट दैट कि यार, like people are just like still like amazed कि how do you survive all that, कि इतनी hate आती है एकदम से। द पॉडकास्ट मैंने विनम्र के साथ किया था जो दोस्त कास्ट पे, दे वर लाइक ऑलमोस्ट लाइक 200 कमेंट्स, और उसमें से सिर्फ 2 लोग मेरे दोस्त थे, और बाकी उसके अलावा सारी हेट थी। और इट वाज नॉट इवन अ लेजिबल डिबेटेबल हेट, वो ऐसी बातें थी कि यूट्यूब के कमेंट्स में यूजुअली सेंसलेस वाली बातें होती हैं, उसमें वही हाँ, तुम सेंस नहीं बना पाते। I mean, but like in the conviction, in my conviction is I am too sold on this idea, अभी तो at least. So I just want like people to be helped out. मतलब मैंने बहुत सारी चीजें ऐसे करी है, tried the Wim Hof method जिसमें तुम ice baths और वो breathing के through you try to हम्म। help out people with their autoimmunes and ये सब, but doesn't have that good a result as this diet has. हम्म। So that's where the conviction lies. That's the motivation behind all of that. When you see your parents actually, तुम अपने पेरेंट्स हम्म। को देखते हो जिनकी हाइपरटेंशन की मेडिसिन लगी हुई है और ये सब लगा हुआ है, एंड दे रिमूव गेट हो रही आउट है। ऑफ इट, दे गेट आउट ऑफ इट धीरे धीरे। इट्स प्राइसलेस, दैट थिंग इज प्राइसलेस सही में। ओके। सो वेयर कैन पीपल फाइंड यू? लाइक यू हैव अ यूट्यूब चैनल? नहीं, नहीं आई है? एम नॉट लाइक, आई कांट डू दैट राइट नाउ बिकॉज मैं अभी आई एम लाइक प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, तो उसके साइकिल में आई डोंट गेट द टाइम टू लाइक एक्चुअली रिकॉर्ड और ये सब, लाइक बट आई एम हम्म। थिंकिंग ऑफ गेटिंग लाइक माय इंस्टाग्राम अप, जिसमें मैं हम्म। छोटी छोटी इंफॉर्मेशनल क्लिप्स डाल दूंगा। हम्म। People can find me on Carnivore Desi. It's हम्म। @Carnivore Desi, CARNIVORE DESI. My personal हाँ, आई handle पुट द would be, लिंक्स बिलो।
Okay, my personal handle would be Samar69, and I think Twitter would be the best place to follow me, Abhi. Right, right. All right, yeah. I had a wonderful conversation. Like, got to learn a Me lot. too, likewise. I had a lot of fun. Thanks Thanks for for taking having your me time. here. Thanks for having I'll, me here. Thank you. yeah.